Hey, good morning, everyone. Good morning. Um, Good morning, everyone. Good morning. Okay, so who all are in? Mahesh, Priya, Archana. Archana, I guess you missed yesterday's session. Yes, sir. Okay, maybe you can. Recording, I'll check, sir. Yeah, recording is available. Yeah. I just checked it. Pratyum, Supriya, Anju, Lalita. What about others? Let's wait for a minute. Do they have the link of the session? Can you please help me to open the Java yesterday after I was able to do? Okay, so there must be an icon. Okay, Anju, there must be an icon like this on your desktop. If not, click on search here and type Eclipse. You will get the same icon. Okay, Good morning. Are you sharing the screen? I'm not not yet. able to see. Okay. Okay, not yet. But let me share. Let me share. Sharing my full screen. So I was saying that you must be having icon like this on your screen. I mean Okay. desktop. If not, go here into the search and click on type Eclipse. You will get the um, that launcher. I completed the assignment, Surbi. Thank you. Switch color. Um, let's see your assignment. Okay. Can I share my screen? Uh, this is Anju, right? Yeah, go ahead, share Yeah. it. Share it. I'm stopping my screen share. Okay. Java 1.8 is not suitable for. Okay, that's fine. That's fine. Okay. Click on OK. I think this one it's old one. Okay, so screen sharing on. I think we lost Anju. Surbi, you would like to share your screen? Let's check your assignment if possible to share the screen and let everybody see that assignment. Surbi, you there? Yeah, hi Shruti, hi Vikrant, hi Saurabh. Hello. Hello. Anju, your voice is very low. Hello. Now it's clear. No, it's still on the very lower side. Oh, I I don't know can what. hear you, but it's very low. Maybe you can go ahead Okay. and share your screen. Okay. Um, yeah, click on that This is. Eclipse icon. Yeah. Click on OK. What is happening? No? No. Okay.
Okay, so go to the right bottom, uh, in the search text box, write environment variable, environment. Okay, so you can see in settings, click second list, or first one is okay. Click on there. Click first. Second one is fine. Second one is fine. We'll direct open that. Okay. Um. mm, 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 okay. Go to second list, system variable, second list, the second square box. Click on path. Yes. You don't have option to edit. Why? Okay, you don't have option to add a new as well. Let's go in the first checkbox, square box. Click on new. Write in capital Java underscore home. No. Something different. Different things are getting typed. Java underscore home. In capital. In capital. It's Uh, Java and un- Java. No. Java underscore home. Capital. Everything needs to be in capital. Okay. Underscore home. Okay. Now go to your folder system, file system. Yes. Go to C drive, program files. Okay. Go to Java first folder. Double click. Okay. Go to up that path. Like above the folder, there is a path, complete path. Oh, correct. That one. Click there. Correct. Copy that. Okay. Okay. That setting icon, second last icon. Yes, correct. This one. Okay. Minimize this. Minimize this as well. Okay. Put here variable value. Okay. Okay. Now click on the fourth variable in the list, path. No. In the previous upper one. Yeah. Path. Fourth. It's a fourth. Correct. Click on edit. New. Paste. Front slash. No. Wait. Hold on. Front slash bin, bin. Okay. Then click on move button, move up button. Correct. Go up. One more time. So you typed double B. Click on edit. Click on first link. No, it's on the top now. Correct. Edit. Okay. Remove that B. Capital B. Perfect. Click on OK. Okay. Click on OK. Okay. Double click on Eclipse IDE now. No. Okay. No. 361 JVM is not suitable for this product. Version 17 is or greater is required. We'll see this. Maybe once I will start with this, we'll see Okay. this. Okay. This is not some, or otherwise, meanwhile, if you want, you can give a try by restarting your application or machine. Okay, that is something, but which I won't recommend because we already started and you might miss again Okay. something. Okay, let's Okay. continue. Yeah. But this is just installation of Java, since you had a previous installation and something is like it's not reflecting. Eclipse is unable to pick that Java. Fine. Give me some time. We'll solve your problem. Okay. 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 Yeah. So
Surbi, you would like to share your screen quickly in a minute. Hello. Yeah, Surbi, you would like to share your screen? Actually, sir, I'm Okay. using a Okay. mobile and Mobile too. Okay. Laptop. not phone. Anyone would like to share with this assignment of switch for colors? No. I can. Pradyum, please share. Guys, please find some time, at least 1 hour after the class. Okay. To at least practice the things. And this is the right time to. Okay. Color one. Okay. So, this is exactly same program that we wrote for integer. Now it's just a matter of converting the similar program with the string data type. Okay, so you can see string color, and that was the smallest change, I would say, which was required in the previous program. And the thing is, double quote integer don't need double quote. Any string um, that is present inside the double quote will be treated as a like literals, one literal, and that's the only difference between integer and string. String always inside the double quote. Just note this thing, and that's what my intention was. Run it once. Okay, yeah, that's all good. All good. Okay. Okay, so that's yeah, you can stop your screen share. Okay, I said like for each loop as well. Okay, I hope if uh, okay, so maybe you can try that as well for each today itself. Okay, guys, please try to spend some time. I'm not saying you need to complete the assignment. Okay, I'm just saying you need to practice something. Okay, Pradyum. Thanks, Pradyum. I will show you if I get a chance on the that for each loop as well. Why these are required? These are small things. Those are getting added into your knowledge into the Java, and those are linked. If you are not able to write today program, it will be you have a difficult tomorrow, and more difficult day after tomorrow. Okay, so make a practice. Okay, so yeah, so where we were, okay. Even while loop, I asked you to spend some time on while loop as well. Okay. Okay. So guys, we tried to understand local and instance variable. To be honest, we were able to complete this much only. For this, each instance object will have its own unique copy of that variable. I have not covered it because we don't know the object itself. That's why I said we will revisit this slide. We will revisit this slide once once we will come to know like, okay, what is the object and how it works, how um, methods work. Okay, then we'll visit this part. Even the static, for static like a demonstration, I need constructor understanding for you. Okay, so do remind me when I am done with the constructor, basic constructor topic on any day. Means whenever we are going to cover at least basic thing about the constructor, do remind me to visit this slide again. I will start from here and I will try to explain these variables one more time. Okay, because again this, yes, someone saying something. So we can see the screen. You cannot see the screen. Yes. Okay. Okay. I think it stopped. Yeah. Thank you. यार बड़े जल्दी बताया यार. Okay. चलो एटलीस्ट किसी ने बताया तो. किसने बताया? प्रसाद ने बताया. Okay, guys. Okay, this is what I was talking about. Guys, जल्दी बताया करो.
तो ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो. Okay, so I was talking about this local and instance variable which we covered yesterday. I will revisit this entire thread to demonstrate that ये क्या चीज है. Okay, for that we need to understand the constructor. इसके लिए constructor understand करना पड़ेगा, इसके लिए object understand करना पड़ेगा, जो हमें आज पता नहीं properly. Okay, so we'll revisit this slide and we'll complete the coding for the entire slide one more time. Okay, now यहाँ से एक्चुअली अपन थोड़ा थोड़ा बहुत ना जावा में एंट्री कर देंगे. लास्ट टाइम अपन ने जो किया ना वेरिएबल्स, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ जावा एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड दैट. ओके, बट दोज वर वेरी बेसिक थिंग. नाउ विल मूव little bit ahead with the understanding about, I will cover these two concept in one set of program. Okay, so basics of class and object. I think you little bit know about the class. Okay, object, we have not yet created an object which is actually doing some significant thing for you. Okay, we have created the method, but again those were like just a dummy method, just for demonstration purpose. Now we will see these two things, how it works and how we are going to use it for automation. The way I am going to write the syntactically, everything will remain same whenever you are going to write the automation script as well. The only smallest difference would be you will be adding Selenium code, which we don't know today. Okay, so let's try to understand. मैं एक क्या करता और आप, I hope you are following some standard approach of creating a folder. You have this basic. मैं उसी में एक प्रोग्राम बना रहा हूँ basic, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ. Okay, so B24 batch basics of class. And देखो मैं नाम भी कैसे दे रहा हूँ. Why this is required? This is required so that you can understand like कि which program is written for, what is the purpose of that code, what is the purpose of that class. Okay, so मैं भी signify कर रहा हूँ कि systematically code लिखो आपके लिए. Okay, main method चाहिए, मैं main method डाल रहा हूँ. Done. Okay, so I have written one class which is currently blank. Okay, I want to understand what is this object and class and how they work. Okay, so let me do one thing which we studied. वो एक variable int I is equal to 100, string name is equal to, आज किसने असाइनमेंट और किसने किया था असाइनमेंट? प्रद्युम्न. अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज फॉरगिव मी. ओके, सो ये दो वेरिएबल, एक ये पता है अपने को. ओके, यहाँ लिखता मैं sys out. गाइस वेलकम टू जावा. ओके, सो अपन चालू हो गया अभी ऑब्जेक्ट में. I am in main method में. ये अगेन दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द कोड इज एग्जीक्यूटिंग. ओके, मैं आज आपको डिबग मोड भी बताने वाला हूँ, इसमें कैसे काम करता है. कंट्रोल सी. आई थिंक डिबग मोड बताया मैंने कल फॉर लूप में. एंड क्या किया? कंट्रोल सी. ठीक है, एक सिंपल कोड लिखा. लेट्स रन इट. वी हैव डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल बट आई एम नॉट यूजिंग इट. ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. छोटा छोटा कोड लिखो और कंप्लीट रन करते जाओ सो दैट यू वोंट फेस एनी कंपाइलेशन और सिंटैक्स इशू. ठीक है, आई एम गुड. माय प्रोग्राम इज रनिंग नाउ. अनिल, आर वी गोइंग टू यूज such a type of code? Absolutely no. In automation, in company, in even in smallest company with the smallest automation framework, we don't need such a type of Java. We need a Java which is supposed to be like created for the there is a purpose. Okay, there is a purpose to create a multiple classes, and that's how we are going to use this Java as well. Okay, so let me create one more class. ये हो गया main method, right? Okay, मैं और एक क्लास बनाता न्यू, और इस क्लास का नाम कैसे देता पता है क्या? B24. ओके, एक मिनट. मुझे सेम टू सेम नाम देना है so that I can find all this
ऑब्वियसली सेम टू सेम नाम नहीं दे सकते, मैं इसको ऑब्जेक्ट टेस्ट, ओके इसको टेस्ट कर दिया मैंने, रीनेम कर दिया। क्यों किया मैं बाद में बताता। ओके न्यू क्लास फिनिश, इसमें मेन मेथड की जरूरत नहीं। ओके इस क्लास में मेन मेथड की जरूरत नहीं। ओके नाउ ओके सो ये सारी चीजें क्लोज कर देता सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या क्या है, अरे ओके सो ये मेरा टेस्ट क्लास है। why I have written this test class, do remember moving forward from date till means from today till we are going to continue with this such a type of coding. I am going to always append my class name with the test word, and this will be applicable for the class which is holding main method. इसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्लास रनेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें मेन मेथड है। और ये मुझे कैसे पता चलेगा क्लास को देख के कि इसको टेस्ट वर्ड है, ठीक है। और ये क्लास देखो, ये क्लास इसको टेस्ट वर्ड नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ कोड रहेगा विच कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड बट इट कैन बी यूज्ड। ओके मैं यहां फिर से मैं आपको डिफरेंस int I इज इक्वल टू 200 यही मुझे दिखाना है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सुरभि सुरभि ओके एंड यहां मुझे मेन मेथड नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू रन दिस क्लास। ओके आई डोंट वांट टू रन दिस क्लास। देन क्या लिखना पड़ेगा? ओके कुछ भी नहीं लिखते, चलो कुछ भी नहीं लिखते। आई टोल्ड यू कि बस इतना ही क्लास लिखा। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लास? दिस क्लास इज जस्ट हैविंग द two variables. Now I want to print this 200. I want to print this Surbi. Okay. अरे बट रन कैसे करेंगे? इधर तो रन किया तो मुझे रन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। द रीजन इज जावा JVM always start from the main method and that method itself is missing. Okay, so this won't run. Now how about this? Run as, okay, this is running. Now my point is I want to print this 200 and Surbi. I don't want to print 100 and Pradyum. Okay, how I can use it? Now let me write the object. You know, key, somebody said during that day when I was trying to explain the home concept like room, kitchen, bedroom, drawing wall. Somebody said if somebody outside from the flat wanted to access some element from our house, they need a key. And today I am going to create a key. मैं इस घर में हूँ, right? I am inside this particular class. I can't say मैं मेरे चाबी से उस घर का ताला खोल दूंगा, right? I need a key, Control C of that house. I'm just creating it. How? This is object. OBJ लिखता मैं जनरली, OBJ ही लिखूंगा. OBJ will stand for object and there is a keyword new. What is the meaning of this keyword? This will allocate the memory into your heap memory. Okay, अपने को ये कोई पूछने वाला नहीं है, बट ये हीप मेमोरी में ये जगह उसकी स्टोर हो जाती है. कंट्रोल V ये उसका सिंटैक्स. ये कहाँ लिखा था? ये हमने पढ़ा था a few basics of, कहाँ था ये देखो, सिंटैक्स, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम. ओके ये मैंने आज एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज करने के लिए बनाया. ओके नाउ अनिल, यू क्रिएटेड द की ऑफ दिस हाउस, डिफरेंट हाउस. इसका की इसमें है, अभी अपन टेस्ट क्लास में है. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम वन क्लास टू मल्टीपल क्लासेस एंड वेरी सून वी विल बी वर्किंग विद द मल्टीपल क्लासेस. तो आपको ये कंसेप्ट आज एक नया ऐड हो जाएगा. आई एम सिटिंग इन दिस क्लास and I am creating a key for this class so that
so that I can work or access something from this class. And that something is at this moment two variable. Okay. So that's why I created this basic step first to creating an object. Obj dot. Okay. Can you see this? I and name. और यहाँ आगे भी लिखा है. Try to understand this first line. I and T. ये जो I है, एक from where it has come from B24 basics of class and object. And I am sitting in the test class. So this I is not mine. This I is not mine at this moment. Okay. The similar will be applicable for name. The same thing will be applicable for name. Okay. So इसको मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जे कर देता, बट आई चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको ये पता चाहिए. मैं इसको यस कर देता. ठीक है. अभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी ये आई ऑब्वियसली दूसरे क्लास से आ रहा है, बट हाउ वी कैन एक्सेस दैट, that's what the magic of Java, and that's what the OOPS concept is all about, and that's why Java created class and object concept. In 90s, we had a very basic code like COBOL, then Delphi. Okay, they were written in a such a way that you can write everything in single file as well. Okay, and that was creating a problem over the period of time when we have a million lines of code, and that needs to be segregated. That code needs to be segregated, and this is the first step to segregate the code by putting something into something which can be reused. Okay, which can be reused in different entity, different container, and this is a container for us today. Okay, मैं access कर रहा हूँ. अनिल बट इसको प्रिंट करना है यार मुझे. ये आपने एक्सेस तो कर लिया, इसको प्रिंट करना है मुझे. ऑलरेडी इक्लिप्स ने बोला ये गलत सिंटैक्स है. इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि अनिल यू नीड टू आइदर स्टोर इट और गिव अ रेफरेंस. ओके, स्टोर इट मतलब आप किसी अलग वेरिएबल में स्टोर कर लो. ओके, कर दिया मैंने. या फिर डायरेक्टली रेफरेंस दे दो. रेफरेंस मतलब डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, वो भी दिखाऊंगा. ओके, स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, यन. ओके, यन स्ट्रिंग ओबीजे डॉट नेम. देखो दोनों को कर लिया मैंने. नाउ द थिंग इज सिस आउट प्रिंटिंग प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू कॉन्केटिनेशन. ओके, कॉन्केटिनेशन समझाता. ये के. ओके, sys out print name is equal to plus. ओके, यन. ओके, ठीक है. देखते हैं. अभी देखो मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं क्लास ये रन कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि इसमें मेन मेथड है. ओके, इस क्लास में वेरिएबल है, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दोज वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ this object. Any doubt so far? मैं रन तो करूंगा, but any doubt so far? Sir, I am not able to actually follow it. Yeah, absolutely. I will explain it. I think you missed yesterday's session. Yes, yes. Okay, maybe today you can check the recording as well. Okay, that will give you the background as well. Okay, I will explain it again, because yesterday we tried to create the classes, and that's why we wrote very simple programs, but that is something which is required, like how to create the class, what is the main method, simple thing that we have seen. No problem, Rajat, I am explaining again. Okay, so see, basics of class and object. This is one class. You can give a name as a as well. Okay, that's fine. You can give any name if you want, but you have to give name as a here as well. Okay, if you want to keep the things simple, but I will keep that big name. The reason is I want to find out my own code maybe after 2-3 weeks or after 1 month.
so that I can revise the thing. Okay, that's why I created this big name so that everybody can understand. Okay. Sir, Mhm. sorry to interrupt you. So if I am correct, is it two classes you have created? And Correct. 2 classes. Okay, yes, that's absolutely correct. See, this is the first class. This is the name of the class. Okay, so let's go onto the left panel. I created B24 basic class and object, and I created B24 basics of class and object test. These are the 2 classes. Clear? And yes, and you are trying to call from one class to Class to another class. Correct. Okay. And with the help of object, but with the help of the class, from the class from where I want to access those variables. Okay. Okay, so these variables, see, these are the J and S. That's why I renamed as well. And I am trying to access I and name. Okay, and these 2 values are present in different class. Guys, it will take time to digest. Okay, we have time. And So we are these not. are the whatever you have highlighted, those are the object name, right? This is the object name. Okay. New keyword is used along with the class name, and you can see this is the class, which is this one. I am sitting in the test wala class. Okay. And I am trying to access non-test wala class. Okay. Okay, clear? Any more doubt, guys? या ऐसा क्यों करना है, उसका रीजन मैं थोड़े टाइम में देता. ओके, मैं इसको रन भी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पेंट में आपको डायग्रामेटिकली बताना है. क्लियर? ये समझा, सिंटैक्टिकली समझ लो. अभी एक्सप्लेन और करता मैं. ठीक है, ये कल का अपना लिंक वाला न्यू डोंट से. ओके, सो सी, अभी मैं डायग्रामेटिकली बताता. मेरा ये क्लास है, एक क्लास है. ओके, यहाँ मैं और एक क्लास बनाता, ये दूसरा क्लास है, तीसरा भी बना सकता हूँ, बट लेट्स गो विद 1 क्लास एट ए टाइम. ओके, सो ये है क्लास ए. ओके, ये है क्लास बी. नाउ द थिंग इज, इस क्लास में ना ऐसा कुछ कोड है जो मुझे यूज करना है. ओके, सो you might have written some code which actually create the user into the system. Okay, create user. Okay, create एक यूजर क्रिएट करता है रैंडम नंबर से, XYZ नाम से क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम PQR नाम से क्रिएट हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द क्लास which is actually having the main method. ओके, माय पॉइंट इज यहाँ वेरिएबल भी रह सकते हैं. यहाँ आप बोलोगे ना तो ये INT जो अपन ने अब भी लिखा है वो ये ऐसा कुछ लिखा है, क्रिएट यूजर नहीं है. बट मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. नाउ कंसिडर you want to create 10 user into the system. Okay, ABCD PQR XYZ LMNOP. Okay, so you want to create those many users into the system. कैसे, वो नहीं, वो छोड़ दो. But there is some code written over here which create the user, which we are not writing because अपना अभी वो काम है नहीं. But main method यहाँ है. तो main method क्या होती है पता है? ये होती है मेन मेथड. आपकी ये मेन मेथड है, मैंने लिखा है मेन मेथड वाला क्लास है ये. मेन मेथड क्या करता है? मेन मेथड मेक श्योर दैट आई नीड एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस. तो पहले क्या करता है ये मेन मेथड? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है यहाँ. ओके, ये हो गया आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट बनाता है एंड देन इट ट्राई टू एक्सेस दिस मेथड. ओके, and this method will be executed and ये कोड फिर से इधर आ गया. Now if I want to create 10 times जाना चाहिए, तो लॉजिकली इमेजिन करो, मैंने अगर ये क्लास ही नहीं लिखा होता, क्रिएट यूजर ही नहीं लिखा होती मेथड, देन आई नीड टू राइट दैट कोड 10 टाइम्स ओवर हियर. मैंने एक ही जगह लिखा है कोड. दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी. मैं ये सेम कॉल करूंगा. अभी ये कोड हो गया मेरा एग्जीक्यूट पहले ऑब्जेक्ट से. मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2. ये फिर से जाएगा इधर, क्रिएट यूजर को कॉल करेगा और फिर से क्रिएट यूजर बनने के बाद ये रिटर्न आएगा. सो दिस मेथड इज अ रिमोट कंट्रोल फॉर यू. यू विल जस्ट रिमोटली
perform the operation with this method. So code will actually present here and the controls will pass from main method. ओके तो ये 10 टाइम जाएगा और 10 टाइम्स रिटर्न आएगा और एक ही कोड 10 बार एग्जीक्यूट होगा और कोड एक ही बार लिखना पड़ेगा. ओनली थिंग इज वी नीड टू क्रिएट द 10 ऑब्जेक्ट, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एंड ऐसा हो सकता है ये शायद मेथड 100 लाइन की भी हो सकती है, राइट? 100 लाइन का कोड हो सकता है जावा का जो क्रिएट कर रहा है. सो यू डोंट नीड टू राइट 10, 100 or 1000 lines of code in the main class. Instead of that, you can segregate, you can organize your code कि create user का इधर है, ये मे बी आपको delete user करने हैं तो ये delete user का कोड हो सकता है ऐसा. ओके अपडेट यूजर करना है तो उसका कोड हो सकता है. ऐसा ही कुछ होने वाला है अपना भी, और ये अपन आज भी करेंगे. वैसे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अपडेट यूजर का भी कोड है. ठीक है, गेटिंग लिटिल बिट. सर ये दोनों में ये जो बी इज इट अ क्लास और व्हाट? इज इट अ क्लास? ये सारे बड़े ब्लॉक क्लास है, ये भी सी वाला क्लास है. इट्स ऑल्सो क्लास, ये भी क्लास है. उसका अंदर बट ओनली थिंग इज मेन मेथड इज ओनली प्रेजेंट इन ए. सो ऐसा कर सकते हैं, मेन मेथड ये सी का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा यहाँ और यहाँ भी आएगा. ओके सी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये सी का भी ऑब्जेक्ट बनाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और ये रिटर्न आ जाएगा कंट्रोल. तो ये दोनों को एक्सेस कर सकता है एंड विल डू दैट एज वेल. सर ये तो फिर मेन मेथड बी और सी में लिखना नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट विल कॉल. करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट. मेन मेथड क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो सिर्फ होल्ड करेगा कंट्रोल. ओके बेसिक थिंग्स गाइस, बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. सो रजत प्लीज डू हियर द रिकॉर्डिंग. ओके यस्टरडेज रिकॉर्डिंग हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है बट बेसिक थिंग्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. गाइस लुक्स गुड. आगे बढ़ू? यही मैं लिख रहा हूं, अभी भी यही लिख रहा था. ओनली थिंग इज आई जस्ट कंसिडर्ड वेरिएबल. मेरा नेक्स्ट टास्क था कि आई विल हैव द मेथड एज वेल. ओके थैंक यू गाइज. ओके मिनिमाइज. ओके सो अभी इसको प्रिंट करके देखते, पहले सारे कॉम्बिनेशन देखते. इसलिए बेसिक्स इसका नाम ही वैसे दिया है बेसिक्स ऑफ. यहाँ सिर्फ बेसिक क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अपन अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं. ओके नाउ लेट मी रन इट. Okay, so you can see, let me go it up. 200 and Surbi, which is actually written in different class. Okay, which is actually written in different class. I am able to access in this class with the help of this object key. Clear? Now the thing is, अभी ये हो गया मेरा वन वे. ओके आई एम जस्ट एबल टू एक्सेस द वेरिएबल. मेथड के बारे में बात ही नहीं की. मेथड को भी अपन ये कोड को और एनहांस करेंगे जब हम मेथड सीखेंगे. नाउ माय पॉइंट इज, कैन आई क्रिएट 2 कीज? कैन यू क्रिएट मल्टीपल कीज फॉर योर होम? यस, सबके पास की होती है ऑलमोस्ट घर की. तो मैं ये ब्लॉक 1 हो गया, मैं इसको है ना कॉपी पेस्ट करता, कंट्रोल V, K1 N1 ऑब्जेक्ट 1 K1 N1. अभी क्या किया मैंने, और एक ऑब्जेक्ट एक्सेस किया और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर से वही रीड किया. why do I need? No, absolutely not needed, because if we have these variables available for any operation, we are done. But can we create? That's what my question was. And yes, we can create. We can create multiple object of a class. Only thing is you don't need to give the same name. Otherwise वो क्या बोलता है, object is also a one of the reference variable. तो वो बोलता है duplicate value. आप देखिए देखना. Okay, so I can go ahead and create the object with only different name and I can perform the similar operation. Clear? Okay, इसको भी रन करके देखते हैं. Sir, Like you're telling, like create user, delete user, it's like that.
create, yes, we can perform this operation as well. Yeah, create user, delete user जो था ना. Okay, so let me go to the background. Currently we are just concentrating on this part. Okay, ये I वाला part इस इधर concentrate कर रहे थे. Okay, create user का method, delete user का method, similar type of method I will be creating in the next class or next concept, that is this one. कहाँ गया अपना basics of method में. Okay. ओके इसमें और एक Okay. और क्लियरिटी आ जाएगी. सेम डायग्राम यूज करने वाले अपन, सेम पेंट वाली डायग्राम फिर से रिविजिट करेंगे एंड विल ट्राई टू सी दैट कंसेप्ट एज वेल. सर वो OBJ1 करना चाहिए उधर 18 लाइन पे. ओके परफेक्ट थैंक यू. Perfect, thank you. Okay, so copy paste. By the way, I won't recommend you to do the copy paste at least for next 4-5 session. क्यों? प्रैक्टिस होगी आपकी कोड राइट करने की. ओके सो दिस इज द सिंपल वे बाय विच. ओके यहां से टेक अवे क्या है? टेक अवे इज जस्ट हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड once you have that object, how you can access something which is present in other class. That's the only object we have for this particular class. Are you okay with this? मेथड वगैरह और आगे बढ़ेंगे बट उसको थोड़ा टाइम दो मुझे. क्या बोलते बेबी स्टेप्स. पहले आपको एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट पता चल गया एंड मल्टीपल क्लासेस बनाना पता चल गया, देन विल मूव विद द नेक्स्ट स्टेप. गाइस आर यू क्लियर विद दिस? लिख सकते हैं फिर. Please create proper folder structure and proper naming convention. Believe me, maybe after 1 month I will ask you, whenever I am going to do the Selenium coding, I will ask you to open this program. Okay, कि भाई ये अपन ने पढ़ा था Selenium का कोड, मतलब Selenium के automation के time I would say, I will say, please open such a code that we have written, because the same concept I am going to use for Selenium. In that, like during that time you need to open the same class, because you must have proper naming convention so that you can find that class. Otherwise you are finding your own classes. Okay, so ये पहले क्लास, ये देखो मैं दोनों क्लासेस कैसे ओपन करके रखता, देखा दोनों क्लासेस ओपन करके रखे. ओके इधर डालू क्या ऐसा? हाँ ऐसा डालता. चलो, so that you can see both the classes on my screen. Okay, yeah, full screen. You can see my entire screen with all the details. ये हाँ पूरा क्लास दिख रहा है. ठीक है, write these 2 classes. Okay, meanwhile अंजू आपका मशीन में चल रहा है. So okay, so one humble and kind request, guys, if you are missing any session, please do visit recording. ओके अंजू आपने मुझे बताया होता ना कल दोपहर को भी कि ये ओपन नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अपन कल दोपहर या शाम तक सॉल्व कर देते वो प्रॉब्लम. हमने I WhatsApp, but this number is in your WhatsApp. This is your WhatsApp number? Yes, so are you there in my in our WhatsApp group? We have WhatsApp group for this batch. Okay, those who are not present in WhatsApp group, please get in touch with Swapnil. Immediately call him and ask him to add it. Obviously he's going to add only when you are done with the registration. And the second point is registration, as well as you will get that access to the portal. That portal access is fine, but you can communicate with me with the WhatsApp group. That is something which is very handy. Okay, now you are facing that challenge of opening the Eclipse, and Eclipse is just creating confusion between your 2 Java. Okay. What we can do? It's okay for me to delete that, the other one, the 18, 17, but from control panel you need to delete. You need to go control panel. Okay, there is a uninstall programs. If you go to the control panel, search on the left bottom, search control panel. It will open one UI. You will find a lot of options in that. You select uninstall programs or software, something like that. Okay, I'm not able to show you on my screen since my screen is being used. Okay. Let me try. Open control panel. Let's go step by step. Yeah, just a minute.
Okay, control panel. Okay, uninstall program or software, something there. Yeah. Okay, click on that. You will see the list Okay. of all the programs. Search for Java 17, which we don't want. Java 17, right? Yeah. There I might have be multiple entries of Java 17. I have Java 8 update, Java 8 update 361 64-bit, Java SC development kit 8 update, Java TM development kit. Anything else? No, no. No? Java, no. Okay, now then reinstall Eclipse. Reinstall Eclipse. Okay. Okay. Otherwise, we need to clean the Eclipse folder as well if it won't allow us. Because what happened, your Eclipse has stored the references of Java 17. Since we installed Eclipse when we had a Java 17 on your machine. Okay. Okay, and that's creating a conflict. Okay. We can go So from lower to upper version, but from upper version to lower version, sometime it create a problem. okay. So So you I need remember, to delete the Eclipse IDE. because it must have, it might have installed at, I'm not sure about your folder that you have chosen, but don't do anything, just reinstall. Double click on the Eclipse setup. For that, we have created radical software folder. Okay. It's D like drive. I want D drive. Oh, D okay. drive. I remember yesterday we created in D drive radical software, and there are two files, Java 8 and D drive, radical software. yeah. Okay. Double click on I Eclipse have. and just keep clicking on next. Okay. It is 6:49. Yes. Will this new object create new memory in main method class, or it will just call the method from that class? It will create a new memory. Whenever we are going to create an object, it will allocate the memory as per the variable those are present in that class. It will assign some memory for those two variables. Vikrant, this is for you. Nineteen participants. Okay, I'm just calling out the name: Anju, Archana, Priya, Lalita, Mahesh, Pratyum, Prasad, Radhika, Rajat, Shruti. Yes, Shruti 2 times. Shruti, why you are 2 times? Saurabh. Hello. Yeah, Hello. Shruti. It's Yeah, Shruti. Anju. Anju. Like workspace is like C/users admin Eclipse Go ahead with workspace. that. Can I launch? Yeah. Launch. Are you able to open it now? It's it is waiting list. Let me check. It must be loading now, but okay.
Saurabh, Supriya, Surbhi, Vikrant, Lalita again. Few students are still missing. Guys, Hello. Yeah. Hello. Yeah. I am able to open now. Okay. It's So showing two folders, Radical Java and Sample. yeah, sample. Okay. So expand the radical Java. Okay. So you can see my folder structure. Okay, like JRE System Library and SRC. No, just ignore that. But you can see something like this, right? You must be seeing this radical and SRC folder. Radical Java SRC. SRC, yeah. Yeah. Okay. Right click here, click new and create a package with the name basic. It's a right click and then new, right? New package, and you will get an UI where you need to put the word basic as a package name and click OK. After that, you need to right click on basic, I right click and right click on basic, new, and say class, new class. This time you are going to create a class. can you repeat for me, please? Like I just done the new Class. See, I'm just showing as well. Did you right click on basic now? Basic folder, the folder that you just created. Okay, basic. I had to right click, right? Correct. Because we are going to create a class inside that basic folder. Okay. 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 Then new. New, then class. Okay. Done. Yes. Okay. Click on OK. I have to rename the class name like. You need to write such a class name. You need to write such a name of your class. Basics of class and object. Okay. Okay. And then hit on OK. So your class structure will be created and that will be presented on your screen. Okay, so Radhika, you are done with the coding, right? Write one more class. For those who are done with the coding, they need to write one more class. The class name would be for example, basics of object. Instead of that, basics of class and object. Instead of that, you just write basics of class and object underscore one or just one more class, and put another variable like variable int a is equal to 1000 and put any other name and try to create the object of that class as well. One more class, this one, uh, basic class without main method wala class. Create one more class. Anju, are you good now? Are you able to write the code now? This is something which you need to write now. Okay. Because if you are not part of the WhatsApp group, please do ping me.
Okay, this is my number. I'm just sharing one more time. Why you need to be part of that WhatsApp group? The reason is, if you face any challenge to access the link, you won't be able to contact anyone other than Swapnil. Okay, so you need to have my number. Please store it, guys. At least till completion of the batch, until you get the job. After that, you can delete it. Okay. Anyone pending? I'm just copy pasting one of the block for reference into the chat channel. Hello, sir. Subhi here. So who is this? Yes, yes. एक्चुअली मैं जो प्रोग्राम है वो रन कर रही हूँ तो हाँ. उसमें प्रद्युम्न का नाम सिखा रहे हैं, मेरा नाम Okay. नहीं आ रहा है। शेयर करो स्क्रीन. शेयर करो, मैं मेरा स्टॉप कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रही हूँ तो ओके. प्रद्युम्न का नाम आ रहा है क्योंकि वेरिएबल का नाम देखो कौन सा है. प्रद्युम्न ही है ना, हाँ, वेरिएबल नाम भी प्रद्युम्न ही है। स्क्रीनशॉट लो और भेजो व्हाट्सएप ग्रुप पे. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, मुझे देखने दो कोड. मैं जब तक कोड नहीं देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या गलती हो रही. स्क्रीनशॉट लो, मोबाइल से फोटो लो आपके लैपटॉप का. ओके, एंड उसको है ना अपने ग्रुप पे सेंड करो, मैं वहां देखता. ठीक है. मीनवाइल लेट मी शेयर, रीशेयर. प्रद्युम्न का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने आपने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी बताओ मुझे. ये लाइन क्या है आपकी, ये लाइन? इस दिन में एक प्रोग्राम हुआ ना तो भी चलेगा, बट सबको वो चीज समझनी चाहिए. बिकॉज एंड ये लाइन तो सेम है जो आपने ये वाला टेस्ट जावा का बनाया हुआ है ना पैकेज, हाँ हाँ, उसका ही लाइन है। सेकंड लाइन भी आपने वही सेम पेस्ट किया है ना, राइट? ये वाला, हाँ, उसके राइट साइड वाला जो ये वाला भी फर्स्ट सेम ही लाइन, है, सेम ही है, दोनों सेम है. चारों सेम है, राइट? करेक्ट करेक्ट, चारों सेम है. इसको तो इग्नोर ही कर दो थोड़े टाइम के लिए. हाँ, अपने और को जो सेकंड वाला पैकेज बनाया है ना उसमें मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है। इसमें हाँ, ओके. और यहाँ क्या कर रहे हैं आप यूज? यहाँ पे भी सेम है, आई है ना आपका, हाँ, वैसे ही मेरा same। आए हैं. आपने स्टोर किया कहीं इधर? नहीं नहीं, कुछ स्टोर नहीं। हाँ, स्टोर करना पड़ेगा उसे और वो इधर देना है. ओके, मैंने आपको भेजा, एक बार चेक करिए व्हाट्सएप में। यार व्हाट्सएप पे तो नहीं आया मुझे. गाइस आर यू देयर ऑन द? नहीं आया अभी तक. ग्रुप पे कोई मैसेज आया? व्हाट्सएप ग्रुप पे आया आया आया. ओके. ओके, आप बोल रही है आई एम इन मेन मेथड, बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट वैल्यू के. आप बोल रहे सब जगह प्रद्युम्न आ रहा है.
और आपका और एक प्रोग्राम होगा, दूसरा नहीं, प्रोग्राम मेरा ये कहना है कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका जो कोड है ना, आपके क्लास का नाम है ना, ये टेस्ट वाला क्लास नहीं है आपका। ये देखो, आपका टेस्ट वाला क्लास नहीं है। आपने जिस क्लास में कोड लिखा है उसी का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसको टेस्ट करो क्लास। ओके। गेटिंग? हाँ। ओके, तो उसको टेस्ट बस। करो। वो रीनेम हो जाएगा। रीनेम बोलेगा तो उसको बोलना हाँ रीनेम कर दो। यू क्रिएटेड, और वो दूसरा जो क्लास होगा उसको उसको डाला है क्या टेस्ट, उसका टेस्ट निकाल दो। अच्छा, दोनों को मैंने अपोजिट उल्टा किया। हुआ है ना? हाँ हाँ। करेक्ट? ओके, जस्ट करेक्ट इट। ओके। ओके, हो जाएगा हो जाएगा। Hello, हाँ, can I share my screen? या हु इज दिस? Anju. अंजू, या प्लीज शेयर। Like now, this Okay, is my this screen. code is done. Click on This save code is on, done. yeah, click on save top. Yeah, This. save. Fine, save. Click on. Now again, click on basic, right click, new. Okay. Class. Yes. Try to give the same name with the test word at the end. B24 basics of class and object test. B24 basics of class and object. B24 नहीं दिया आपने तो भी चलेगा, मेरे लिए segregation के लिए रखा है। Moving forward. Okay, okay. Class. Okay, wait. And don't forget to click the checkbox. Okay, so Lalita, I will add you into the WhatsApp group. Okay, anyone is not added, do let me know. Class and object test लिखो। हाँ, करेक्ट। नीचे एक चेकबॉक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो ऐड करो। थर्ड, नहीं उधर नहीं, वो नहीं, नीचे और नीचे, करेक्ट, फर्स्ट वन। हाँ, फिनिश करो। ओके, और अभी के लिए ना मैंने कोड पेस्ट किया है आपके चैनल पे। Okay. हाँ, वो कोड कॉपी पेस्ट करो, अपन देखते पहले चलता है क्या। This one. नो, इन द चैट चैनल, जूम के चैनल पे, जूम पे कोस्ट। व्हाई वी आर स्टोरिंग, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे वेरिएबल में स्टोर। वो वेरिएबल ही स्टोर कर रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं बस। ऑब्जेक्ट इज अ वे, की से घर में जाएंगे ना, तो वो की इज जस्ट एन वे। आप जूम में है ना, मैंने कोड शेयर किया है ना, तो हाँ. वो कोड कॉपी करो और लाइन नंबर 7 के आप पेस्ट करो। ओके, हु इज दिस? और किसी का पिंग आया है मुझे? सुरभि, आई विल ऐड यू बोथ, सुरभि एंड ललिता। सुरभि, आपका नाम क्या है? सुरभि सिर्फ मतलब श्रृंगी है। ओके, ठीक है, मैं ऐड कर। अंजू, आर यू एबल टू कॉपी? ऊपर एकदम जाओ, ऊपर वो आपका नाम दिख रहा है ना ग्रीन में, अंजू। स्क्रीन नहीं, यहाँ आपको करना चैट है ना? ओपन करने, चैट अपना जूम का चैट। एकदम टॉप पे जो ग्रीन पे नाम दिख रहा है ना आपका, स्क्रीन के टॉप पे ग्रीन, यू आर व्यूइंग अंजू। स्क्रीन शेयर है क्या, मतलब चैट चैनल का है? आप चैट कहाँ से करते हैं मुझसे, वो ओपन करो। Okay, this one, right? आई एम नॉट एबल टू सी, आई सी ओनली क्लिप्स। Okay. I think you are not I sharing my copied entire that. screen. Okay, put it at line number 7. Let's see. कॉपी किया ना तो ठीक है, क्योंकि you have shared only Eclipse with me. Correct. Okay. Now just correct the spelling mistake. Okay. At line number 7. Just mouse over. Wait. Okay. Cannot be. Delete it. Delete that name and type B4. Yeah, that's it. Click. Delete that BJ. Okay.
B24 4, or just do one thing. Click on the first class. First class. First Here? class. No. First class. First file which you have created previously. No, that one below. Correct. Double click. Copy that B24. Double click on that name. Double click. Just double click. It will be highlighted. Just double click. Okay. Copy. Go into the another class again. Correct. Okay. In B24, delete that line number 7. Replace it. Okay. Same for first word B2 instead of B2. Hold on. Just line number 7. Concentrate on line number 7. Okay. Click. Control V. Space OBJ. Save the program. There is a at line number. Wait. Hold on. Line number 8. There is a 4 written at the end. Why? Delete that. Save it. There is this floppy icon as well on the screen. Okay. Right click on a program. Run as. Okay. Java application. Run it one more time. I think you were UI. You need to reorganize, I believe. Okay, so you are able to run it. Output is also there, but it's on at the bottom. You go to the bottom at console page, because I'm not able to see your entire screen. It's already there at the bottom. Output is already printed. Console. Console. Okay, so just little bit up and change the panel. Little bit up. Drag and drop that panel. Okay, drag and drop that panel. It will take some time, I know. Yeah. That's fine. It's one-time activity. Click on console. You need to drag and drop console. Correct. You can see that. Okay. Fine. So this is your welcome to Java, Anju. Okay, thank you. Stop your screen share now. Okay. Let me share. Okay. So somebody asked me like, what was that question? Guys, we are moving slowly, but I believe since you have missed yesterday's session, repeat it, re-attend it with just going through the recording and trying to understand the very basic thing. We did nothing even yesterday and day before yesterday, last week as well. We were just trying to understand the very basic thing. Okay, so Vikrant, you are done with the calling. Okay, so you shared something. I'm just opening it. Object 1C. Object 1D. So yeah, that's correct, right? Okay, yeah. So you created one more class. Okay, perfect. Thanks, Vikrant. Okay, इसको कैसे डालते हैं अभी? इसको close यहाँ से करते हैं क्या? Okay. ठीक है. Okay. All good. Shall I move now? In 1 hour 10 minutes, we are able to write only 2 simple basic classes. Can you imagine OOPS concept where we will be writing 4, 5, or 6 classes? And in Selenium, you will be using 4 different technology: Eclipse, Java, Selenium itself, and TestNG. Forget about the Jenkins when we will be reaching that point, or rest assured. Okay, so guys, please do lot of practice where you should not be blocked in writing the code. राइट कोड करना ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज आनी ही चाहिए. और वो कैसे आएगी? यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस. जावा का कुछ है ही नहीं उसमें, प्रैक्टिस करना है आपको, सिर्फ कोड कैसे लिखना है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द नॉट ऑल अबाउट दैट्स अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द क्लास एंड ऑब्जेक्ट. एंड ये देखो, मेरे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे अगर देखोगे ना, मेरे दोनों क्लासेस आजू बाजू दिख रहे हैं. सिंपल चीज है ये. अगर मेन मेथड वाला क्लास है टेस्ट वाला, तो इसका कोड कैसे इसमें से कॉल हो रहा है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपके यहाँ भी ऐसे कोड क्रिएट होना चाहिए. अभी मैं नेक्स्ट वाला कोड क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ मेथड. ये देखो, बेसिक्स. यस,
Sorry to interrupt you, sir. So No can I problem. share my screen? I have Yes, an yes. issue. चलेगा चलेगा, शेयर करो। B24 मैंने होल्ड किया यहाँ। स्टॉप शेयर, आप करो। हु इज दिस? ये कौन थी? कीप योर माइक ऑन। Yes, sir. Who is this by the way? Surbi. Okay. Yes, sir. So okay, object one क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अनिल, अनिल कहाँ है? बराबर प्रिंट हुआ है? So यहाँ ये वो वार्निंग है। ओके, सो माउस और करो उसके वार्निंग के ऊपर। प्राइवेट लिखा है ना आपने, वो प्राइवेट निकाल दो, पब्लिक करो उसे। वेट आ रहे हैं बस। क्या? Yes, sir. ओके, प्राइवेट सीखा ही नहीं हमने, इसलिए मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं करता। सेव कर लो सारे प्रोग्राम। गुड, यू आर राइटिंग करेक्ट। देखो गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन ऑफ सुरभि? शी हैज रिटर्न कंट्रोल फ्लो वाला फोल्डर जिसमें if else कल किया था आपने, फॉर लूप किया था, स्विच किया था, सिंपल फॉर लूप। शी स्टोर्ड प्रॉपर code even with the basic folder my local instance variable. So if we want to visit that code, you can easily refer. Okay, thanks Surbhi, Okay, sir. you are writing a good code. Okay, मैं फिर से शेयर करता। any other doubt guys? आगे बढ़े। Share. Okay, so where I was trying to say, हाँ अभी थोड़ा मेथड के बारे में बात करते हैं। अपन ने वेरिएबल, ऑब्जेक्ट और क्लास देखा। अभी मैं ना थोड़ा बेसिक्स ऑफ मेथड का ट्राई कर रहा हूँ। देखो नेम लिखा मैंने B24 बेसिक्स ऑफ मेथड। इसमें मेन मेथड नहीं डाल रहा हूँ, ये सेम सिमिलर अपन लास्ट टाइम जैसे कर रहे हैं। ये फिनिश कर दिया, इमीडिएटली इसको कॉपी कर लिया। एक हैबिट लगा लेते हैं प्रॉपर कोडिंग स्ट्रक्चर की। न्यू, इसको क्लास, और इसको बोलते हैं ये मेरा टेस्ट है। तो इसमें क्या है? मेन मेथड। बन गए मेरे दो क्लास, फिनिश। ओके, मैं पहले वाले दो क्लास डिलीट कर देता, मतलब रिमूव कर देता स्क्रीन से। बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट जानबूझ के डिलीट किया है क्योंकि आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ओनली टू फाइल। ये क्या है? जावा। ठीक है, ये देखो गाइस, आई होप एवरीबडी इज विथ मी। प्लीज फॉलो मी फॉर सम टाइम, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन फॉर नाउ। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अगेन ये पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ जावा ही है, एकदम बेसिक्स ऑफ जावा। मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया, सॉरी एक क्लास बनाया एंड उसका और एक क्लास बनाया बट विथ मेन मेथड। ओके, और ये अप्रोच अपन फॉलो करेंगे। अगर टेस्ट वाला क्लास है तो उसमें मेन मेथड होनी चाहिए, या फिर मेन मेथड जिसमें उसका नाम अपन टेस्ट रखेंगे। एज सिंपल एज दैट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर राइटिंग एंड दोज फाइल्स विल बी one after another every time, so that we don't have to remember or you don't have to find in your folder structure because there will be lot of files. Okay, नाउ यहाँ क्या करता, मेथड लिखना है तो मैं यहाँ एक मेथड लिखता। अपन ने वो एग्जांपल दिया था ना, क्रिएट यूजर, वही करता। पब्लिक वॉइड क्रिएट यूजर। नेमिंग कन्वेंशन देखो, मेरा मेथड के बारे में बात मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सो नेमिंग कन्वेंशन, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल फॉर ईच वर्ड। ओके, मेथड नेम स्टार्ट विथ स्मॉल and subsequent word will be in capital. First letter of subsequent word will be in capital. Okay, so इससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसको है ना कैपिटल में सारा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट अ स्टैंडर्ड बीइंग यूज्ड बाय ऑल द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ओके, it is called, because by looking at this particular thing you need to understand that this is a method। ये मेथड ही होनी चाहिए। ओके, क्रिएट यूजर में यहाँ एक sys out करता, sys out यूजर क्रिएटेड। ओके, ये क्या है? एक मेथड है। ओके, मैं इसको एनहांस करने वाला हूं। एक बहुत छोटे मेथड लिखे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डिलीट यूजर। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ मिनिमम जब अपन क्रिएट यूजर बनाएंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं दिखाता आपको अपन को फ्यूचर में क्या करना है। यहाँ है क्या, नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे।
ओके, फॉर एग्जांपल एक कोई पेज है, अपन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर, हॉबी, स्किल्स, ब्ला 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 एंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, और उस यूजर से क्रिएट साइन अप फॉर्म याद है ना आपको? साइन अप में अपन क्रिएट यूजर बनाते हैं. ओके, सॉर्ट ऑफ दिस कोड. तो फिर आने लिए एक लाइन का कोड क्यों? क्योंकि सेलेनियम, वी डोंट नो सेलेनियम टुडे, वी विल राइट 50 लाइन्स ऑफ सेलेनियम कोड टुमारो. सो फॉर टाइम being we are just using this system.println statement. Okay, because we are not developers, so we are not developing the code, and we are not automation engineer yet, so we can't write automation code as well. So that's why we are writing some dummy code, but we are trying to understand Java, and today our goal is to understand Java. But I'm trying to give you the like idea that how this is being used. That's why I'm using real time method name. यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, मेथड 1 मेथड 2 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख देता. चलो, इवन 2 वेरिएबल का एडिशन मेथड भी लिख सकते हैं, ये मेथड 1 भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते. बट व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड? मीनिंग ऑफ मेथड इज टू हैव द बिहेवियर. क्रिएट यूजर इज अ बिहेवियर. delete user is a behavior where we perform certain operation. Okay, मतलब set of action that we do is called as behavior. Set of action. Create user करते टाइम first name, last name, address, email दिया. Okay, 4 action किए हमने, तो we that is called as behavior. Do we need to create only one user for entire app? Facebook के लिए एक यूजर है क्या सिस्टम में? मुझे बताओ तो. फेसबुक के लिए कितने यूजर है? वी हैव मिलियंस ऑफ यूजर इन फेसबुक, राइट? मिलियंस ऑफ यूजर्स है. तो मिलियंस टाइम मार्क जुकरबर्ग में मिलियंस टाइम कोड लिखा है क्या वो? राइट, उसने मिलियंस टाइम कोड तो नहीं लिखा है, उसने एक ही बार कोड लिखा है क्रिएट यूजर का. सिर्फ अपने को पेज अलग अलग, हर पेज पे हर एक को साइन अप का अलग फॉर्म दिखता है, बट वो जाके कोड एक ही कॉल करता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस इफ आई कैन. ओके, सो मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया? ये देखो, ये पहला डेस्कटॉप, यूजर 1 सुरभि, श्रुति, प्रसाद, रजत, प्रद्युम्न, किसी का नाम भूल गया होगा तो ये बाकी इनके नाम, प्रिया, अंजू, सबके नाम लिए, विक्रांत. ओके, ये यूजर साइन अप करने के लिए बैठे हैं. कहाँ? फेसबुक पे. ओके, फेसबुक पे. फेसबुक का ये कोड है, ये कोड है. ओके, तो उस सब लोग लॉग इन करेंगे तो इतने लोगों के लिए कोड लिखा जाएगा क्या? फेसबुक जुकरबर्ग बैठेगा कि इतना राइट करने के लिए कोड? ऑब्वियसली नहीं. वो बोलेगा मैं एक पीस ऑफ कोड लिखूंगा. ये पीस ऑफ कोड है ये. ओके, ये थोड़ा अलग देता. ये पीस ऑफ कोड लिखा है मैंने. सब लोग लॉग इन करेंगे एंड दे विल जस्ट, आई विल जस्ट कलेक्ट दैट डेटा एंड आई विल, ओके, वो भी और अच्छे से करते. चलो, यहाँ डेटाबेस होगा, ये डीबी है. ओके, आप यूआई पे आपका फॉर्म भरोगे, उस पे सबमिट क्लिक करोगे. सबमिट क्लिक करने के बाद वो सारा डेटा यहाँ आएगा. जुकरबर्ग ने जो भी क्रिएट साइन अप यूजर का कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब डेटाबेस में एक एंट्री हो जाएगी एक टेबल में. ओके, और यहाँ आपको मैसेज आएगा कि यूजर क्रिएटेड. सिमिलरली सुरभि यही करेगी, श्रुति भी वही करेगी, प्रसाद भी वही करेगा. कोड एक ही कॉल हो रहा है. आर यू गेटिंग गाइस? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? उसको ये जो चीज लिखी है उसको बोलते हैं मेथड. उसको बोलते हैं मेथड क्योंकि ये कॉमन बिहेवियर है. ओके, एंड आई एम, ये देखो अपना वही है, उसने भी ऐसा ही कोड लिखा है, फेसबुक में भी ऐसा ही कोड है. क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, ब्लॉक यूजर, अलाउ यूजर, उसके सबके ये उसने मेथड लिख के रखे. सो वी डोंट हैव टू रिपीट दैट कोड, बट दैट कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम. ओके, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड. क्लियर? मेथड वर्ड के बारे में पता चला. फॉरगेट अबाउट जावा, सब में मेथड यही यूज होता है. मेथड का काम ही वही है. पाइथन रहे, जावा रहे, सी हैश रहे या और एनी अदर लैंग्वेज. कुछ में जैसे शेल स्क्रिप्ट में फंक्शन बोलते हैं उसे, जावा पाइथन में भी शायद फंक्शन बोलते हैं. वर्ड उसका अलग है, बट जावा में उसको मेथड बोलते हैं. क्लियर? शैल आई मूव टू द स्क्रीन नाउ? आई वांट योर कंफर्मेशन. ओके, आई वांट योर क्विक कंफर्मेशन. यस, जो भी है मुझे उससे पता चलता है कि यू गाइज आर फॉलोइंग मी. ठीक है, तो ये मेथड की बात कर रहा था. ये देखो, मैंने पहले वही एग्जांपल ट्राई किया था
एक्सप्लेन करने का कि क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर. ओके, लेट मी गो बैक नाउ. जुकरबर्ग का कोड, एज्यूम करो आप जुकरबर्ग हो और आपने फेसबुक लिख रहे हो और ऐसा कुछ कोड लिखा, ऑब्वियसली या कुछ तो लिखोगे आप. ओके, और ये मेथड डमी मेथड मैंने जस्ट लिखा आपके समझने के लिए. नाउ द थिंग इज, लेट्स गो बैक टू द टेस्ट. लास्ट टाइम वी वर एबल टू एक्सेस द वेरिएबल. अभी हमें मेथड एक्सेस करना है, एक स्टेप आगे जा रहे हैं. किस में जा रहे हैं अभी हम? ये देखो मैंने ये कोड कैसे कॉपी करते, डबल क्लिक करो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है. डबल क्लिक, कंट्रोल सी, यहां ओके, यहां लिख कंट्रोल वी ओबीजे. ओके यार ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. ओबीजे कंट्रोल वी ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर एंड इज इक्वल टू है. मेरा कीबोर्ड नया है एंड दैट कीबोर्ड, सॉरी न्यू कीबोर्ड नया है एंड दैट कीबोर्ड इज लाइक बिहेविंग वेयर्ड. ओके, ओबीजे इस मैंने उस घर की की बना ली है. ओके, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे अबाउट द होम कंसेप्ट. एंड कैन यू सी दिस? क्रिएट यूजर, डिलीट यूजर, और एक था मेथड. अनिल व्हाट इज दिस? दिस बिलोंग्स टू जावा, यूज इट और लूज इट. जावा ने बोला क्लास बनाओगे तो मैं ये आपको विरासत में दे दूंगा. ये बाकी के मेथड जस्ट इग्नोर दोस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेथड विच वी हैव क्रिएटेड. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द मेथड विच वी हैव क्रिएटेड? अपना क्लास का नाम देखो, जो ये क्लास है और जिसमें मेथड पड़े हैं. ओके, ट्राई टू रीड. ये क्या है? void. void अनिल void सिखाया नहीं यार, void है, कुछ नहीं है इसलिए अभी सिखाया नहीं, बट वो भी आएगा. मैं void को भी मैं पढ़ाऊंगा. रिटर्न टाइप बोलते हैं उसे. ओके, उसकी जगह क्या क्या आ सकता है void की जगह, वो भी अपन देखेंगे. ये देखो इसने बुलियन लिया है, अपन void क्यों ले रहे हैं? ओके, तो वो रिटर्न कर रहा है बुलियन. अपने को लगने वाला है यस लगने वाला है. तो ये चीज सीखनी है अभी, जो पता नहीं, बट ये चीज पता है हमें, और ये कैसे करते हैं और एक्सेस करते हैं ये पता है. ओके, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ. क्रिएट यूजर लिखा, सिलेक्ट किया. ओके, उसके बाद ये एक हो गया. मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता, ओबीजे डॉन डिलीट यूजर भी लिखता, और क्या था, ओबीजे डॉन मेथड भी लिखता, ताकि हमने जो किया मैं उसको कॉल कर रहा हूँ. Anil, what is the difference between last time we used the same thing, only the entity that we accessed was different. We accessed global variable. Okay, and here we are trying to access the method. Okay, that's the only basic difference. रन करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है यार. जावा रन मतलब हो भी गया, उधर का क्लास एक्सेस करके प्रिंट भी हो गया, यूजर क्रिएटेड, यूजर डिलीटेड एंड इन मेथड वन. ओके, बट मुझे बताओ जुकरबर्ग ने ऐसा कोड लिखा तो वो यूजर किस नाम से क्रिएट होगा, मैं बताता अभी. ओके, यूजर क्रिएटेड विथ नेम, ओके रजत, ठीक है, प्रिंट करता. मतलब मैं प्रॉब्लम बताता, पहले प्रॉब्लम बताता इसका, ये इस कोड में क्या प्रॉब्लम है. यूजर क्रिएटेड विथ रजत. नाउ कंसिडर, लेट गो बैक टू आवर फेसबुक वाला. यहाँ रजत है, यहाँ प्रसाद है, यहाँ सुरभि, या प्रद्युम्न है, यहाँ अंजू है. एवरीबडी इज क्रिएटिंग डेटा एज पर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज. बट जुकरबर्ग ने कोड में गलती की, उस सबको स्टोर करते टाइम सबका नाम स्टोर कर रहा है रजत. इज दैट करेक्ट? नो, सबका नाम रजत कैसे हो सकता है यार? सब अपने नाम से स्टोर होना चाहिए. ओके, सबका नाम अपने नाम से इस डेटाबेस में यहाँ टेबल होता है. थ्री लेयर आर्किटेक्चर आपने सुना होगा. यूआई, ये यूआई, बिजनेस लेयर, ये बिजनेस लेयर, और ये डेटाबेस. अपन ने वही आर्किटेक्चर में जावा कैसे काम करता है, तो मैंने उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ. जावा ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे ही कोड लिखा जाता है. ओनली थिंग इज बड़ा कोड होता है, बड़े लाइंस होते हैं, बड़े वेरिएबल होते हैं बहुत सारे, बट कोडिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है किसी भी कंपनी में. ओके, तो सबका नाम रजत स्टोर हो रहा है, तो यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, जो बिजनेस लॉजिक करेक्ट करना पड़ेगा. अपन करते हैं उसको. दिस इज नॉट द वे विच वी शुड राइट, क्योंकि मुझे अगर ये सुरभि ने कोड रन किया तो भी वही रन होगा, श्रुति ने किया, प्रसाद ने किया तो भी रजत ही प्रिंट होगा. नाउ वी नीड टू मेक दिस मेथड मोर लॉजिकल. हाउ दिस कैन बी डन? ओके, मैं बोलता कि ऐसा यूजर बनाओ जिसका नाम है ना, मैं डिसाइड करूंगा अनिल होना चाहिए. ओके, सिंपल. बट यार
इस मेथड को कैसे पता चलेगा कि अनिल होना चाहिए? ओके, गोइंग बैक, ये बोलता है यू पास द नेम, you pass the name, I will add it to database, the same name that you are going to pass. समझ रहा है? ये देखो एक सिंटैक्स मैंने चेंज किया, रजत को निकाल डाला, मैंने बोला मैं ये दो ब्रैकेट के अंदर मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने कुछ तो इंसर्ट किया है, फर्स्ट टाइम कुछ तो इंसर्ट किया है, एंड दैट वर्ड इज नेम. अनिल नेम तो समझा, ये स्ट्रिंग क्यों दिया? स्ट्रिंग इज अ डेटाबेस. अनिल मुझे आईडी भी देना है, मुझे मेरा मोबाइल नंबर भी देना है, डालो या INT मोबाइल और EMP एम्प्लॉय ID. ठीक है, आई कैन पुट दैट. ओके, मैं उसके बारे में बाद में बात करता है. आई एम नॉट यूजिंग इट बट आई कैन पुट दैट. ओके, करंटली पे मैं उसको यूज नहीं कर रहा. तो नेम लिया, नेम डाला, यहाँ कोई कोड होगा जो डेटाबेस में नेम कौन सा डालेगा? अभी ये डालेगा. लेट्स गो हियर. अभी मैं इसको फिर से बैक टू ओरिजिनल स्टेट करता. अभी ये एरर दे रहा है पहले तो एरर नहीं दे रहा था. ये क्या बोल रहा है बताया क्या? ये मेथड बोल रही है, दिस मेथड इज सेइंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट समथिंग. क्या? ये देखो यहाँ नीचे मैंने माउस ओवर किया यहाँ तो मुझे आ गया. ये बोल रहा है कि अनिल यू हैव रिटन अ मेथड विच एक्सपेक्टिंग. ओके, एक्सपेक्टिंग की वहां दो वैल्यूज आनी चाहिए. एक होना चाहिए स्ट्रिंग, कुछ भी लिखो, इंट. इस दो डेटा टाइप के वैल्यूज क्रिएट यूजर में पास होने चाहिए. ओके, एंड यू आर नॉट पासिंग दैट. उसको बोलते हैं पासवर्ड. पासिंग करना, पास करना. पास पास पता है ना, पास करते हैं फुटबॉल में, पास करते हैं एक दूसरे को फुटबॉल का बॉल पास करते हैं, राइट? सिमिलरली हम वैल्यूज पास करेंगे. कौन से? फुटबॉल का प्लेयर क्रिकेट का बॉल पास करेगा क्या? नहीं. तो सिंपल, वी नीड सेम डेटा टाइप जो वो एक्सेप्ट कर रहा है. ओके ओके, सो यहां लिखता मैं अभी कंट्रोल. अरे यार, अनिल और दो वैल्यू बोला है तो कॉमा सेपरेटेड. अनिल का एम्प्लॉय आईडी है 101. ठीक है, अभी एरर चली गई. इन दोनों को आई नहीं क्योंकि इनको बताया ना कि ऐसा कुछ कोड होगा. अभी देखते क्या होता है. आ गया, यूजर क्रिएटेड विथ नेम अनिल. आप यहां जो नाम देंगे उससे यूजर क्रिएट होगा. गेटिंग वैल्यू पासिंग समझ में आया? बेसिक बेसिक एकदम बेसिक समझ में आया? एकदम बेसिक किया है ना. इसको रिटर्न टाइप है ना, मल्टीपल वैल्यू है. ओके, बट बेसिक स्टेप बाय स्टेप. आपको क्लास ऑब्जेक्ट पता चल गया, वेरिएबल पता चल गए, अभी मेथड पता चल गई, मेथड एक्सेस करना पता चल गया. नाउ यू आर एबल टू पास द वेरिएबल एज वेल. ठीक है, ओके. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो यूजर क्रिएट करने के बाद मुझे डिलीट भी करना है, तो मुझे एक्चुअली चाहिए एम्प्लॉय आईडी से डिलीट होना चाहिए. ओके, तो मैं इसको भी मॉडिफाई करता, इसको बोलता INT आई. आप EMP ID एम्प्लॉय आईडी पास करो. यूजर डिलीटेड विथ EMP ID इज इक्वल टू डबल कोट्स कंप्लीट प्लस EMP ID. डन. अभी देखो मैं क्या करता हूं, इसको सेव करता हूं, टेस्ट पे जाता हूं. ये अभी एरर देने लगे. ये बोल रहा है आई एम गोइंग, आई नीड वन इंटीजर पैरामीटर. मैं दे देता, जो यूजर क्रिएट किया है उसको डिलीट कर दो. राइट क्लिक, रन एज. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. यूजर क्रिएटेड विथ अनिल हैविंग एम्प्लॉय आईडी ऑब्वियसली 101 एज्यूम किया अपन ने. यूजर डिलीटेड विथ एम्प्लॉय आईडी. कैन आई क्रिएट मल्टीपल यूजर? योर चॉइस. ओके, obj डॉट. ओके, क्रिएट यूजर. सी ये हुआ अनिल, उसके बाद क्या रजत जो अपना हुआ नहीं था. ओके, उसका एम्प्लॉय आईडी है 102. ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V. ओके, 103. विक्रांत का नाम रख देते आज से विकी. ओके, सो 3 यूजर हो गए. नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप ऑटोमेशन इंजीनियर हो, आपके डेवलपर ने एक कोई कोड लिखा है. वो कोड क्या करता है? फॉर एग्जांपल फाइल अपलोड करता है. एज्यूम करो फाइल अपलोड करता है, एक फाइल लेता है अपलोड करता है. ओके,
सिस्टम पे, वहां वो फाइल लिखती है। उसने बोला यार, आपको बोला कि या मुझे बोला, अनिल could you please test my functionality if you are able to load 1000 file one by one, 1000 file one by one। ओके, आप क्या करोगे यार? सुबह 8 बजे आओगे ऑफिस, क्लिक क्लिक क्लिक, फाइल बना के रखोगे, कॉपी पेस्ट 1000 टाइम, क्लिक क्लिक क्लिक, अपलोड, वेट करोगे अपलोड होने का, अपलोड हो गए, फिर से क्लिक क्लिक। डू यू थिंक दिस इज द करेक्ट वे टू टू complete your test case of uploading 1000 files to the application which is developed by your developer? आपको लगता है कि अब टेस्टिंग सही तरीके से जा रहा है आपका? मुझे तो नहीं लग रहा। गेटिंग प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यही ऑटोमेशन इंजीनियर करते हैं, मैं करता हूं ये चीज, सेम चीज करता हूं। मुझे ओनली थिंग इज, मेरे को 1000 फंक्शनलिटी होती है, मेरा डेवलपर कभी भी आता है मेरे पास, अनिल यार ये चेक करना यार, ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। 500 फाइल अपलोड करने के बाद है ना, सब कुछ सही है, बट मैंने कोड गलत लिखा है, उसकी वजह से रैम हिप मेमोरी फुल हो रही है। मतलब आपकी रैम होती है ना 4 GB 8 GB, वो कभी फुल नहीं होनी चाहिए। एक फाइल अपलोड की, खत्म, रैम क्लीन होनी चाहिए, गार्बेज कलेक्टर कॉल होना चाहिए, क्लीन अप होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा। बट ये कब पता चला? जब 500 फाइल अपलोड की, 501 फाइल अपलोड ही नहीं हो रही, क्योंकि रैम ही नहीं है, सिस्टम बंद, कहीं क्लिक नहीं हो रहा। एंड ये इशू अपन ने ढूंढा, तो ऐसे ही ये मेजर इशू, राइट? सो this is something which we need to do in company, and that's why we need to have some tool कि जो आपको ये करके दे। एंड दिस इज द एग्जांपल कि ऑटोमेशन की जरूरत क्यों है। ये मैंने पहला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, क्रिएट यूजर। फॉर एग्जांपल किसी डेवलपर ने कोड लिखा कि अनिल वी आर ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर इनटू योर बैंक। न्यू कस्टमर बैंक करते हैं ना, केवाईसी फॉर्म भर रहे हैं, यू आर लॉगिंग, और एक उसको भी और करता, और यू हैव टेकन अ होम लोन एंड योर डेटा इज बीइंग एंटर्ड इनटू द सिस्टम। मतलब क्या हो रहा है? यूजर क्रिएट हो रहा है ना एचडीएफसी बैंक में या आईसीआईसीआई में या फिर एसबीआई होम लोन में क्रिएट कर रहे हैं, राइट? यूजर सेम 50 पैरामीटर डालोगे आपने, इसने कब लोन किया, आईटीआर फाइल का अपलोड करोगे, फॉर्म आपका, आधार कार्ड अपलोड करोगे, राइट? उसके बाद आपके एंट्री करोगे, आपके सैलरी स्लिप अपलोड करोगे, सेम होता है। तो ये अगर कोई डेवलपर लिखता है तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए अपने को कुछ तो ऐसी जादू चाहिए ना कि जिसमें ये सारी चीजें रिपीटेटिव भी हो। मैं रिपीटेटिव बात कर रहा हूं, वन टाइम तो होनी चाहिए, रिपीटेटिव होनी चाहिए। तो कैसे कोड लिखना चाहिए ऑटोमेशन का? वी आर जस्ट गोइंग टू यूज जावा मेथड, दैट्स इट, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल बाय दिस वे। ओनली थिंग इज today we are writing simple single code because we are learning Java. Tomorrow we will be adding maybe 10 20 100 लाइन्स ऑफ सेलेनियम कोड। क्लियर? लिखोगे ये कोड बेसिक का, इसको एडवांस करेंगे अपन। क्लियर? ओके, हेलो, मेरा ये स्क्रीन, मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ क्या बाय द वे? ठीक है, यही काम करना है अपने को ऑफिस में, कंपनी में, और ऐसी जावा यूज करनी है। ओनली थिंग इज अपने को सिर्फ पता चाहिए कि कौन सी जावा कब यूज करनी है, और उसके लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा आपको। आपके पास 3 महीने, ओके, 3 महीनों में आपको ये सारे कंसेप्ट दिमाग में डालने, ओके? क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछेगा। इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है सिंपल पूछेगा। सपोज यू, जावा में और ऑटोमेशन और सेलेनियम तीनों को मिला के क्वेश्चन, सपोज यू वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन repetitively on your application, certain for your application you want to repeat something, okay? What are the different feature of Java, Selenium और TestNG you will use? Could you please explain? बस यही एक्सप्लेन करना है कि हम एक क्लास बनाएंगे, उसमें एक मेथड बनाएंगे, उसमें पैरामीटर पास करेंगे, उसको, उस मेथड को बोलेंगे कि दिस मेथड इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस मेनी पैरामीटर डिपेंडिंग अपॉन द यूआई, और वो रिपीटेटिव काम करेगा, और उसको कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बस यही बताना होता है, ओके? बट ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, राइट? इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, ये फिर भी मतलब बिलो एवरेज वाला क्वेश्चन है अभी भी, बट अबव एवरेज एवरेज वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, राइट करेंगे कोड, मैं दोनों कोड सामने रखता, इसको अपन एडवांस बनाएंगे। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में इसको एडवांस बनाएंगे। आप बोलोगे अभी ये क्या है? ये भी एक जावा का कंसेप्ट है। कैसे करें यार इसको? हाँ, आ गया। दोनों क्लास ओपन है,
पहला क्लास कौन सा लिखना चाहिए? ऑब्वियसली राइट साइड का क्लास पहले लिखना चाहिए। क्यों? यार कोई तो कॉल कर रहा है। ओके, ठीक है। राइट साइड का कोड पहले लिखना चाहिए विदाउट टेस्ट वाला, और फिर टेस्ट वाला कोड लिखना चाहिए। मैं तब तक सुरभि एंड ललिता को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता। ललिता, सुरभि, आर यू डन विद द रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन हो गया है ना? क्योंकि अदरवाइज दिस गाइज विल लाइक। Yes, yesterday Okay, okay. only I ओके did. ओके, ठीक है चलेगा। क्योंकि वो दैट्स कंपलसरी, मुझे भी ऐड करना है, तो मुझे बोलते फिर क्यों ऐड किया। सुरभि रेडिकल बैच 24। ओके, ऐड पार्टिसिपेंट का है। Hello? यस, We have to do the same, like we have to take the new, that's the procedure we have to take, like how to write the code, same thing, basics. हाँ बेसिक्स में अभी बेसिक है, देखो हाँ मेरा भी बेसिक में, मैं भी बेसिक यूज कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा पक्का आपको व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द फोल्डर, बट क्रिएट राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। क्लियर? Okay, okay. ओके ओके। मैंने किसको ऐड कर दिया? should we print the employee ID too? हाँ कर दो, दैट्स असाइनमेंट फॉर यू। प्रिंट द एम्प्लॉय आईडी एज वेल। ओके, दैट्स असाइनमेंट। गाइस, हाउ आर यू फीलिंग लाइक अबाउट जावा? इंटरेस्टिंग है थोड़ा? मतलब your thought after attending like I think only 2 session, actually we are in the second session logically. Interesting? No, we'll make it interesting. Okay, ऑटोमेशन आएगा ना, आप और इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि चीजें ना आपके सामने होती हुई दिखेगी। ओके, कि बटन कैसे क्लिक हो रहा है, आपका लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ब्राउजर ओपन हो रहा है और पूरा यूजर क्रिएट हो रहा है, ऐसा। ओके, इट विल बी इंटरेस्टिंग। Be with me and have patience. Time तो लगेगा. Don't miss the classes. If you miss the classes, please do attend the recording. You won't feel disconnected then. मैंने किसको ऐड किया? ललिता को करना है ना? I think सुरभि मैंने आपको ऐड कर दिया, ललिता आपको भी ऐड कर दिया। ओके, और कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है मुझे बताओ। अपने आई थिंक वी आर 16-17 guys and that's good. I used to have batch of 40 students, 35, 40, 45. Okay, then it would be little difficult to spend the time. But if we have 20 guys, it's always good. Ki I can spend time on each and every individual. And have patience, be with me. That's my mantra. आपका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बट इट विल टेक टाइम यार। प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करके नहीं आओगे ना, आपको डिफिकल्ट जाएगा, पता है। हर सेशन में एडअप होते जाएगा, और ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैं फिर से बैक में जाके पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि थिंक अबाउट योर अदर कलीग्स, देयर आर अदर 17-18 guys, दोज आर गोइंग टू वेट फॉर यू। ओके, तो प्रैक्टिस करो। नए कंसेप्ट से पहले ना कोड लिखने की प्रैक्टिस करो। ऑल द कंसेप्ट्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड। ओके, सो ट्राई टू गेट दोज थिंग्स। जावा डिफिकल्ट नहीं है, जावा बिल्कुल, आई वुड से बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है यार। ब्रेक का टाइम हो गया है। ओके, इवन आई एम टेकिंग 5 minute ब्रेक। यू कैन ऑल्सो 10-10 हुआ है, 10-20 को मिलता है। इवन आई फॉरगॉट लाइक ब्रेक भी लेना चाहिए। And we almost spent more than 1.5 hours. Okay, guys, we are taking 10-minute break. My screen will remain shared. मैं just video and guys, I am back. I am back. आगे सब लोग आ गए, और you need another 5 minutes?
Okay, I am in GP. I am not in group. I will register today. Okay. Is yes, I'm going to share all the soft copy of our code. yes. सब कुछ जो मैं करने वाला हूँ क्लास में सारे स्लाइड्स सब कुछ शेयर करने वाला हूँ. ओके रजत, सब कुछ शेयर हो जाएगा. सब कुछ शेयर करेंगे. वीडियो रिकॉर्डिंग ये आपको ये फैसिलिटी मतलब बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि यू कैन हैव दोज रिकॉर्डिंग एंड यू कैन यूटिलाइज दोज रिकॉर्डिंग ऑफलाइन. ओके कोई भी कंसेप्ट मैं ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन करता हूँ, बट इवन इफ यू मिस इट समहाउ you have a chance to repeat it. सारे recordings available है. And guys, I'm planning to visit institute. I am going. How many of you are in Pune? पुणे में है कौन कौन है पुणे में? They can like meet me offline in the classroom. Okay, so yes, Lalita, we'll plan some session from the classroom as well. Obviously, those are online. They will continue to attend online. मैं सिर्फ बैठूंगा classroom में. And okay, अपन मिलेंगे. If you are in Pune and near around, then that would be really good. We'll have this session in on premises. I'm not sure if everybody is back. Let's wait for another 2 minutes. अपन basics of method कर रहे थे. Hello? Yes, who is this? Can I, Anju, Anju? can I share my screen? Yes, please go ahead. I'm stopping my screen share. Like, what does, What is the problem with this? yeah. Okay, because you have not created an object. Okay, so and this is the method which don't need main method. Delete line number 5 to 9. Delete all. Like, then I created like this test Test. Java. Test Java will hold main method. Double click on test. Yes. Okay, this is main method, right? Now you have to create these methods in another class. Okay, good. This I did like this. Okay, so there's delete 5 to 10, 9. 5 to 9. Delete. Okay. Okay. Done. Okay. Now you have to say public. Write public. Let's write it. Public void space void. No bracket. Void void space create user. C small user ka U capital. Create user U capital. Okay, bracket. Okay, curly bracket. After that, curly bracket. At the end, curly bracket, one curly bracket. Okay, hit enter. Okay, so this is now your first method is created. Okay, now you need to refer. You need to refer on my screen. Now I am sharing my screen. Yeah, लिख दो yes y yes o u t. लिखो yes y yes o u t. Yes y yes yes y yes yes for Singapore. You wrote y.
SYS. Do remember this, SYS OUT. Control space. No, don't give space. Control space. Okay. Now write double quote. Inside that two bracket. Okay. Write something. Your name. Write name. Okay, fine. Done. Save it. This is the structure. Now you can add anything that you want. Go to the first method. Test wala. Ha, correct. Now instead of Divya, delete Divya. Okay. डबल ब्रैकेट नहीं, वो भी डिलीट कर दो अभी टेम्पररी एक एक स्टेप करते हैं ना, अपना कोड करेक्ट करते हैं, डबल ब्रैकेट भी डिलीट कर दो. ओके. अभी और आपने गलती क्या की है, लाइन नंबर 7 पे टेस्ट वर्ड क्यों है? टेस्ट वर्ड नहीं चाहिए ना. आपका 3 नंबर लाइन आप उसी क्लास में हो, उसी का ऑब्जेक्ट बना है, आपने को दूसरे क्लास का बनाना है. तो 7 नंबर लाइन पे टेस्ट वर्ड रिमूव करना है. 7 नंबर लाइन पे जो भी है उसका टेस्ट वर्ड रिमूव करना है. करेक्ट. You just delete that test word one by one. No, don't click double click. Use backspace. हाँ, करेक्ट. सिमिलरली उसके एंड में भी एक बार टेस्ट. ओके. ओके, कुछ तो हुआ है. मेथड का डी बाजू में क्लिक कर दो कहीं. होल्ड ऑन, सेव करो सब. एरर है अभी भी वहां. हाँ, वो फ्लॉपी का आइकॉन है ना, उसी पे क्लिक करने का, लेफ्ट साइड पे. ओके, क्लिक करो बाहर कहीं, उस पे एरर है क्योंकि आपके स्पेलिंग शायद अलग हो सकता है. चेक कर. ओके. I will check that. हाँ, करेक्ट. तो इसको रन करोगे ना आप तो रन होगा, बट 7 लाइन नंबर पे अभी भी प्रॉब्लम है. ओके. एंड दैट बेसिक ऑफ. ओके, मैं देखता. बेसिक से यस से बेसिक्स ऑफ है. बेसिक्स सी के बाद यस है. करेक्ट. इसके अंदर हाँ. करेक्ट. एंड में भी और एक बार करना पड़ेगा. ओके, देखो अभी और लाइन नंबर 9 और 10 को कमेंट कर दो. 9 और 10 को कमेंट कैसे करना है? बेसिक्स नहीं, वहां यस रह गया अभी भी. हाँ, ये कमेंट सही है. यस डालो सी के बाद. कंट्रोल जेड. यूज एरो कीज. कंट्रोल जेड करो. हाँ, यूज एरो की यूज करो. एरो की यूज करो. आदत लगाओ एरो की करेक्ट. हाँ, यस लिखो. ओके. और लाइन नंबर 10 भी कमेंट कर दो. परफेक्ट. सेव इट एंड रन इट. तो ये आपका बेसिक हो गया. अभी आपको पैरामीटर ऐड करने हैं. रन करो इसको. ओके, रन करो इसको पहले. नाउ यू कैन. करेक्ट. नाउ यू कैन एनहांस दिस प्रोग्राम. ओके, अंजू प्रिंट हो गया देखो. ओके. So basic Okay, thing, okay. syntactically your code is now correct. Now you only need to enhance it. वो कैसे? वो मेरे स्क्रीन पे है मेरे. Okay. I'm sharing my screen. ठीक है guys. ये हो गया like basics of method. But इसमें और एक चीज कवर कर रहा हूं मैं. ओके. और एक चीज कवर कर रहा हूं. I hope everybody is with me so far. How to increase the font? सौरभ, Windows preferences. यहाँ जावा एडिटर, और एडिटर में एडिटर को एक्सपांड करते हैं. यहाँ है ना, कहीं तो है यार. जावा एडिटर सेव एक्शन कहीं तो है. यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडिटर में. मैचिंग ब्रैकेट, टेक्स्ट एडिटर. ओके, शो लाइन नंबर यहाँ मिल रहा है. ऑटो सेव फाइल, ऑटो सेव भी कर दे सकते. इनेबल ऑटो सेव डायरेक्टली एडिटर.
I think in general text editors, जनरल में है क्या? जनरल general editors, and then in ओके, text हाँ यहाँ editor, है कि जावा एडिटर्स की जरूरत नहीं, एडिटर्स एंड यहाँ I think text editor एक is there मिनट, left. मेरा स्क्रीन नीचे गया है, टेक्स्ट एडिटर, हाँ दिख रहा है कहीं? Colors and fonts. Scroll up. There is a hyperlink above. कलर्स एंड फॉन्ट, ओके यहाँ है, ठीक है ठीक है, मेरा 14 है। Sir, I think Control plus भी use कर सकते. कंट्रोल प्लस, ओके, सी यहाँ मिल गया मुझे सब कुछ, फॉन्ट वगैरह सब मिल गया है, ओके ठीक है, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, ओके ठीक है, आगे बढ़े, इसको और एनहांस करें थोड़ा। Anil, I have one doubt. Yeah. So whenever we are declaring any variable, say in the basics method dot Java, so in a method create user, we have passed two variables, string name and int empid. So here string is not denoted as a highlighted word. String is not a because it's a literal, okay, because it's not a primitive data type. String is a class in Java, okay, देखो दिख रहा है यहाँ, Java lang पैकेज में उसको बनाया है, ये डेटा टाइप है, इसलिए that's why it's not highlighted, but it will be used as a variable because it can store the set of word or characters, okay. Internally this is how Java designed this particular variable which is a class itself, Okay. that's why see class का नाम, अपना class का नाम ये देखो, ये भी highlight नहीं हो रहा, वैसे इस Java का भी एक class है but it's not a variable, int is a variable, so इसलिए वो highlight दिखता है, और string का हमेशा yes capital दिखता है, क्यों? क्योंकि वो class है, हमारे भी class का नाम देखो B से अपन ने capital डाला है, वैसे Java ने भी string जब class लिखा तो उन्होंने yes capital लिखा है Java कन्वेंशन के हिसाब से, इसलिए हम हमेशा string को yes capital लिखते हैं और वो highlight नहीं होता, एंड हाईलाइट कौन करता है? हाईलाइट तो जस्ट इक्लिप्स करके देता है अपने को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। स्ट्रिंग के ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे अपन, उस टाइम में ये कॉन्केटिनेशन बताऊंगा, ये प्लस कैसे चलते हैं, आज होगा तो आज ही कर लेंगे यार वो, बट थोड़ी थोड़ी चीजें है ना अभी, आई थिंक एडअप करते जा रहे हैं, ओके। शैल आई मूव एंड any doubt? Hello sir, I may need to leave the meeting soon because there is no electricity at my place and my mobile battery is also dying. No problem Lalita, make sure you attend the recording, okay, refer recording, and you can complete the like remaining code. Fine Lalita, no problem, okay. Yes Archana, you are saying something? Sir, when I was adding this method public void, one thing got added, import org.w3c.dom.user data handler. Okay, वो मेथड मैं देखना चाहूंगा, बट उसको डिलीट कर दो, इंपोर्ट हुआ होगा तो, यहाँ इंपोर्ट हुआ होगा ऊपर ना, उसको डिलीट कर दो, ओके, सो दैट इट वोंट बी रेफर्ड, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट आया होगा, इंपोर्ट भी पढ़ना है अपने को, बहुत है बहुत है बहुत है। आज कितना होता है देखते हैं। मैं ये एक छोटा सा कंसेप्ट एडअप करना चाहूंगा, ओके, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट ऐड करना चाहूंगा मेथड में, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से मेथड इज गोइंग गुड, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है? रिटर्न टाइप, रिटर्न करती है मेथड, कुछ तो रिटर्न करती है, ओके। क्या रिटर्न करती है? रिटर्न करती है कि ये यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं, क्रिएट यूजर। डिलीट यूजर में ऐसा बोल सकते हैं अपन कि कोई मैसेज जा रहा है कि यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड। मैं देखो दो डिफरेंट चीजें बोल रहा हूं। क्रिएट यूजर इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, मतलब ट्रू और फॉल्स, ओके। एंड डिलीट यूजर इज समथिंग लाइक मैसेज सेंड कर रहे हैं अपन कि यूजर हैज बीन डिलीटेड, ओके। नाउ लेट मी राइट द सिमिलर कोड to get
द रिटर्न टाइप ओके, इस मेथड को मैं रिटर्न टाइप डाल रहा हूँ। ये मेथड क्या बोल रही है कि आई एम गोइंग टू सेंड अ मैसेज टू द कॉलर ये सब्सक्राइबर है और ये एग्जीक्यूटर है और ये इम्प्लीमेंटर है। कॉलर कौन है? कॉलर तो ये है जहां से कॉल हो रहा है, यहां से कॉल हो रहा है। ओके, माय पेरेंट क्लास, टेस्ट वाला क्लास हैविंग मेन मेथड, ये मेरा रिमोट कंट्रोल। इसको बताना है कि ये सच में ये कोड कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं। ओके, फॉर दैट यू नीड अ रिटर्न टाइप, एंड रिटर्न टाइप फॉर दिस मेथड इज बुलियन। बुलियन मीन्स ये बताएगा कि आप ट्रू या फॉल्स पास करना चाहते हो या नहीं। ये देखो इसको एरर आ गई क्योंकि जब भी रिटर्न टाइप डालोगे वो वॉइड क्या था, वो भी रिटर्न टाइप ही था। ओके, वॉइड की जगह मैंने आज एक वर्ड ऐड किया, बुलियन। अनिल स्ट्रिंग हो सकता है कि हाँ हो सकता है इसको स्ट्रिंग देने वाले। अनिल इंट हो सकता है, आप इंट का मेथड लिखने वाले हो, एम्प्लॉय आईडी या दूसरा कोई, और उसको इंट का रिटर्न टाइप करोगे। मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिख दिया। नाउ ये एरर आ रहा है, इस सेट ने एरर आ रहा है अभी। इट डजंट केयर कि क्या रिटर्न टाइप है, यूज इट और लूज इट दिस मेथड। बट ये बोल रहा है कि मुझे रिटर्न टाइप दिया है ना, तो मुझे कोड लिखना ही है उसका, एज सिंपल एज दैट। इफ आई हैव रिटर्न अ रिटर्न टाइप, आई हैव टू रिटर्न समथिंग। ओके, सो मैं लिख रहा हूं रिटर्न ट्रू, अभी के लिए ट्रू। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ये हम भेज रहे हैं कॉलर को। नाउ कॉलर विल एक्सेप्ट इट और लूज इट, मतलब वो लेना है उसको तो लेगा या नहीं लेगा। ओके, सिमिलरली डिलीट यूजर स्ट्रिंग, इसको मैं कर रहा हूं रिटर्न यूजर क्रिएटेड, यूजर सॉरी डिलीटेड है, डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, गेटिंग? मैंने क्या ऐड किया, एक सेमीकोलन। मैंने जस्ट रिटर्न टाइप ऐड किया इस दोनों मेथड को। रन करता हूं, इसका कोई इंपैक्ट है क्या इस कोड पे? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप इज ऑलवेज, देखो ये कोड आ गया, सब कुछ वैसे ही रन हुआ जैसे चाहिए था। नाउ आई वांट टू चेक। ओके, मैं ये कोड ऐसे रख रहा हूं, उसको लिखता ओबीजे डॉट डिलीट यूजर, पहले क्रिएट यूजर लिख लेते, क्रिएट यूजर, इसमें लिखता सौरभ। ओके, एम्प्लॉय आईडी 10104। okay, now here actually I want to check if the user is successfully created or not. Now I can go ahead and collect that variable, boolean result of creation of user, and ये लिखा मैंने, समझ रहा है? थोड़ा सा हल्का, इसको क्यों नहीं लिखा, ये ऑप्शनल है, ये यहाँ भी ऑप्शनल है, यहाँ भी ऑप्शनल है, बट मैंने इस बार लिखा क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड रिटर्न टाइप एज वेल from Java. Okay, similarly for delete user, या ओके, delete user क्या है, वो रिटर्न क्या कर रहा है, इसका टाइप यहाँ पता चलता है, रिटर्न टाइप। डिलीट यूजर का रिटर्न टाइप कैसे पता चलता है, यहाँ पता चलता है। आप इसको माउस ओवर करोगे ना तो भी आएगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ गया, देखो अभी। मेथड का रिटर्न टाइप देखो क्या है, अभी भी वॉइड है। ये माउस ओवर, ये सारी चीजें आपको है ना बैठ के आराम से एक बार देखने की, माउस ओवर क्या होता है। ये देखो माउस ओवर किया मेथड पे स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, माउस ओवर किया बुलियन रिटर्न टाइप, माउस ओवर किया वॉइड रिटर्न टाइप, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया। ओके, ये समझने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। यही काम ये कौन करके दे रहा है, ये इक्लिप्स करके दे रहा है बाय द वे। ये सजेशन वगैरह ये सब इक्लिप्स करके देता है, इसलिए हम इक्लिप्स यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नोटपैड में लिखना पड़ता कोड। उसके बाद और एक मुझे करना है, डिलीट यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग रिजल्ट 1, इसको रिजल्ट 1 दे दिया, ओबीजे डॉट डिलीट यूजर EMP-ID 104। ओके, सौरभ को सिस्टम से डिलीट करने का कोड लिख रहे हैं। टेम्पररी मैं ये सारा कोड कमेंट करता, टेम्पररी जस्ट समझने के लिए। ओके, दिस टाइम आई एम रीडिंग द कंप्लीशन स्टेटस ऑफ दिस कोड, कि वो सही से चला है कि नहीं, और anything that is being performed and send back to the caller। यहाँ बुलियन भेज रहा है डेटा टाइप, यहाँ
स्ट्रिंग डेटा टाइप भेज रहे हैं. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. लेट्स सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ओवर हियर. यहाँ तो इम्पैक्ट होगा ही नहीं क्योंकि वो रिजल्ट वेरिएबल हमने कहीं यूज ही नहीं किया. सिस आउट, यहाँ लिखता रिजल्ट फॉर यूजर क्रिएशन. ओके, ये छोटा कर लेता स्क्रीन. इज इक्वल टू प्लस बुलियन. बुलियन नहीं रही यार, कंट्रोल सी रिजल्ट. ओके, कंट्रोल सी deletion. Guys, forgive me with my typing mistake because I don't want to spend time on the correcting those, at least string वाले तो syntactically correct है अपना को. तो ये यहाँ result 1 करना पड़ेगा. Okay, everybody with me. That method is doing something that we know, but method return में कुछ तो भेज रहा है, उसको collect करना है अपन को. Okay, that is called as return type. And here we are trying to collect that return type or return data and we're trying to print that. क्या होता है देखते हैं. Sorry. Okay. यूजर क्रिएटेड विथ सौरभ, ये कहाँ था लिखा? ये देखो यहाँ लिखा था. यूजर क्रिएटेड विथ नेम वाला आया, पहले यहाँ हुआ, देन यूजर डिलीटेड आया होगा. ओके, कहाँ गया हूँ मेरा, मिनिमाइज कर दिया मैंने. ओके, सो इफ यू कैन सी. ओके, ये यूजर क्रिएटेड में क्या लिखा था? यूजर क्रिएटेड विथ नेम, ये पहला प्रिंट हुआ. उसका एम्प्लॉय आईडी सेकंड वाला था. ओके, एम्प्लॉय आईडी कहाँ है? एम्प्लॉय आईडी डिलीशन ऑफ यूजर, कौन सा यूजर है, ये प्रिंट हुआ. उसके बाद हमने जो स्टेटस कलेक्ट किया था उसको भी इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया है. रिजल्ट ऑफ, ये देखो रिजल्ट ऑफ यूजर क्रिएशन, ये वाला ट्रू आ गया क्योंकि हमने ट्रू ही भेजा था. फॉल्स भेजोगे तो फॉल्स आएगा. रिजल्ट ऑफ यूजर डिलीशन, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली जो पास हुआ था यहां से. गेटिंग? ये क्लोज करता कंसोल. सो माय पॉइंट इज we can return something as well. Yeah, and if you don't want to collect it, that's your choice. But this method will return something as well if you want. Else you need to put the void keyword. Clear? Just छोटा सा ऐड किया एक. Clear? Could you please update your existing code to add this return वाला code? Please update it. ओके, तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ मेथड. एकदम सिंपल मेथड मैंने अभी किया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप. लेट्स कंप्लीट दिस प्रोसेस. गाइज थोड़ा प्रैक्टिस करो. एक पूरा वीक मिलने वाला है बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए. तीनों रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. पहला रिकॉर्डिंग में कुछ है नहीं, इंस्टॉलेशन है. कल का और आज का, दैट इज द इम्पोर्टेंट. रिपीट इट. सुरभि आपको ऐड कर दिया शायद ना मैंने. ऑटोमेशन में लगता है ये. यस, आंसर इज सिंपली यस, वी नीड दिस.
Let me know once you are done with the code. और एक कंसेप्ट देखना है. आज और एक सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे. ओके. बेसिक्स ऑफ मेथड हो गया, बेसिक्स ऑफ क्लास हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, वेरिएबल थोड़ा बहुत ज्यादा समझने लगा है, पैरामीटर पासिंग हो गई है. आपको ये प्रोग्राम रिपीट करने हैं प्रैक्टिस के लिए, और इसके बाद वाला एक होगा उसके भी असाइनमेंट रहेंगे. ओके गाइस, प्लीज स्पेंड सम टाइम टू राइट द कोड. बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करो, लिखो कोड. कब तक? और मतलब 1 महीना लिखो कोड, 1 महीना सिर्फ. उसके बाद कॉपी पेस्ट करना आपको भी समझ में आ जाएगा, क्या कॉपी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एरर कैसे सॉल्व. बट अभी के लिए लिखो थोड़ा. एंड नेक्स्ट सैटरडे अपना 8:30 का टाइम है, राइट? स्टार्टिंग टाइम. नेक्स्ट सैटरडे I will try to make sure that I am available from 8 to 8:30. We will make sure कि आपको कुछ डाउट है, कुछ एरर आ रहे कोड में, we'll resolve those things by 8 to 8:30 and we'll start our actual class by 8:30. Okay, Supriya done, Surbhi done. सर इसका आउटपुट प्लीज दिखाएं. अरे आउटपुट क्या? ओके, आउटपुट दिखा देता मैं आपको. ये देखो नीचे डिलीट हो गया, क्लोज कर दिया मैंने. देखो यहाँ आया, मैं नीचे डालता इसे. ये बहुत बड़ा है, बट ये 4 लाइन कॉन्सेंट्रेट करो. ये इसके लिए रिटर्न टाइप के लिए. सर एक क्वेश्चन है. हम्म. जब अपन रिटर्न रिटर्न टाइप लिख रहे बुलियन उसका, तो इन केस इन दिस केस वी आर रिटर्निंग ट्रू, राइट? तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट कोड अंदर कुछ भी हो जाने दो, इट विल रिटर्न ट्रू, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये देखो मैं करता उसको. महेश ने क्वेश्चन पूछा. महेश, राइट? दिस इज महेश. यस यस. yes yes okay, let's do it. If name is dot equals, okay, equal string के लिए ऐसा लिखते हैं equal. हाँ, if name is equal to, मैं जानबूझ के डालता विकी नहीं, अभी राधिका डालता. चलो राधिका बच्ची है, राधिका. ओके, रिटर्न ट्रू, एल्स. ठीक है, एनहांस किया कोड, हो गया. अभी कंडीशन के हिसाब से रिटर्न होगा. यस यस. अपन इंप्लीमेंट करके देखें फिर तुरंत. यहाँ सौरभ डाला है, क्या आना चाहिए बताओ? फॉल्स. करेक्ट. लेट मी रन इट. आया फॉल्स, राइट? ओके, सो एनहांस कर सकते हैं. दिस इज लाइक इफ एल्स. कल सीखा था आपने, तो बस वही यूज किया मैंने. इफ एल्स की अगर नेम राधिका है तो ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो. तो अगर मैं यहाँ राधिका नाम पास करूंगा ना, ऑटोमेटिकली ट्रू भी रिटर्न हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से. ठीक है, यस सर. ओके. थैंक्स महेश. देखो और एनहांस कर दिया कोड. If you want, you can put this, otherwise that's fine. Chat. मुझे कितने डन दिख रहे हैं? 49 को आया था डन. मुझे 3 डन दिख रहे हैं. 4 5 10 डन चाहिए मुझे. 6
7 8 महेश कोड हुआ सौरभ Yes, sir, का done. सौरभ का हो गया श्रुति सुरभि okay Archana done. Okay fine. So this is how we can go ahead and use return type. You know आपके basic folder में अच्छा खासा कोड बन गया है okay which you can rewrite in different like basic underscore practice नाम का folder बनाओ उसमें ये कोड पूरा repeat करो. You have 6 days okay to repeat the code. Now next concept is array. मैं जा रहा हूँ ये क्लोज कर दूं ये क्लोज कर देता ये प्रोग्राम में शेयर कर देता व्हाट्सएप ग्रुप पे करता शेयर so that you can directly refer those code okay न्यू क्लास एक एरे नाम का कंसेप्ट है B24 माय एरे मैं माय वर्ड क्यों लिखता हूँ पता है माय वर्ड द रीजन इज इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस सम टाइम ये एरे नाम का इसका भी क्लास हो सकता है जावा का तो कंफ्यूजन स्टार्ट करते हैं आपका कोड प्रॉपर्ली रन नहीं होता सो जस्ट टू अवॉइड दैट B24 वैसे भी मैं देता हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट कोड आई हैव रिटन फॉर अ पर्टिकुलर व्हाट कोड आई हैव रिटन फॉर अ पर्टिकुलर बैच माय एरे मेन मेथड डाल दी क्योंकि मुझे सिर्फ एरे समझना है ये डिलीट कर देता लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस प्रोग्राम B24 basics of class knowledge. Okay, suppose you have this name और नंबर ले लो या अपने बैच ले लो ये अपनी बैच के जो भी स्टूडेंट है ओके सो लेट्स गो विथ अल्फाबेटिकली अंजू का नंबर 1 है सपोज रोल नंबर अपन ने बैच का रोल नंबर अंजू का 1 दिया अर्चना 2 बुद्ध प्रिया 3 Mahesh 4 Pradyum 5 I want to store this number somewhere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 18 or I want to store names okay all the names for this batch how many student has logged in till today till this point 18 how many variables I need can anybody tell me I want to store name right or their employee ID one variable okay what about others 1 0 to 17 okay so okay this any other guess any other guess 0 to 17 the count भी बताए तो भी चलेगा what is the question Radhika if I want to store your all names or maybe your roll number 17 I guess one for each ठीक है 17 count भी सही है okay to be honest मैंने जावा आज तक जितनी पढ़ी है because you and I am learning Java with you as per my understanding I need 17 और 18 variable जितने लोग हैं मैं उतने variable बनाऊंगा उतना store करूंगा consider नेक्स्ट बैच में मेरे 45 स्टूडेंट आएंगे तो मुझे 45 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे कंसिडर उसके बाद मुझे सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो मेरे पास कितने वेरिएबल चाहिए 1000 वेरिएबल चाहिए लॉजिकली इट्स नॉट गुड टू पुट those many variable into the code because that will create a readability problem and that readability problem is solved by Java with the help of array and that is what my next question हाँ आप लोगों ने one variable लिखा है I know guys कि आपने क्या सोच के one variable लिखा है because you are thinking कि मैं array का variable बनाऊंगा that's it my point is कि मैंने array पढ़ा ही नहीं है तब तक मैं क्या करूंगा जो सीखा है उसके हिसाब से that was like my view and on that front I need to create 17 or 18 जितने स्टूडेंट उतने वेरिएबल एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट दैट एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन इज array that's what my point is okay so array how those array work
ओके, हाउ दोज array वर्क. ओके, इंटीजर का बनाते पहले. इंट माय, ये माय क्या है, वेरिएबल है. डबल आर, इसका और ऊपर का कुछ लेना देना नहीं है. इसका नाम दे दूंगा, एरे नेम देता है, ऐसा कुछ देता है, एरे नेम, ताकि कंफ्यूजन ना हो. इज इक्वल टू न्यू एरे कंप्यूटिंग. क्या कर रहा है कैलकुलेटिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक्लिप्स हैंग. होल्ड ऑन, काम कर रहा था. एरे नेम, तो रह क्या, कुछ गलत है क्या. क्रिएट क्लास नेम एरे. क्या गलत हो रहा है. एरे नेम स्पेलिंग्स. ओके, न्यू क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. दूसरा तरीका भी देखते हैं. दोनों दो, देर आर टू वेज. लेट मी गो वन बाय वन. ओके, int array name is equal to curly bracket 1 comma 2 comma 3 comma 4. ओके ओके, सॉरी. ओके, मैंने क्या गलती की है. एंड ओके, एक हो गया. दूसरा देखते हैं. array name. ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. क्यों नहीं आ रहा. रीनेम array name. ओके, सेम हो गया. 1 कर देता इसको. नहीं, int syntax not responding. Wait guys, okay, कमेंट कर, इस एक को कमेंट करता पहले. ओके, लेट्स गो विथ दिस वन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. एरे क्या बोलता है कि यू कैन स्टोर योर एलिमेंट sequentially. Where? Okay, where? Open my note. Okay, so ये गया तो चलेगा क्या अभी. ओके, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रिकॉर्डिंग, सो ये क्या यू आप यूज कर सकते हैं. मैं न्यू क्रिएट करता फाइल. नाउ 2 3 4 5 6 7. ओके, सो दिस इज योर एरे. ओके, ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, हिप मेमोरी की मेमोरी लोकेशन होती है. आर वी वरीड अबाउट इट? नो, ये जावा इंटरनली मैनेज करता है. ओके, बट वी कैन स्टोर एलिमेंट हियर 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 here here sequentially, and java always start from zero. counting always start from zero. java में हमेशा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है. तो मैंने पहले ये कोड लिखा है. इसका मीनिंग क्या हुआ पता है. एरे की साइज 4 है और उसमें ये 4 एलिमेंट है. एरे का नाम ये है, एरे का टाइप इंट है. यहाँ आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते ऐसा, या स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि मैं इंट का एरे बना रहा हूं, तो इंट के वैल्यूज डालने चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन. ये एक तरीका हुआ, इसको कमेंट कर देता. दिस इज वन वे. नाउ सेकंड वे, यू कैन हैव एरे हैविंग साइज 4, बट इसमें एलिमेंट पता ही नहीं है कितने, सॉरी एलिमेंट के वैल्यूज पता नहीं, एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4. तो लेट्स गो विद दिस फर्स्ट, बिकॉज दिस इज अ बेसिक एरे, और ये थोड़ा उसका एडवांस वर्जन के बारे में बाद में बात करते हैं. लेट्स गो विथ 5. I can have an one variable, ये one variable है, ये पूरा variable is one, ये पूरा जो square box है ये one variable, and where I can store these many elements. So, but those elements value कैसे assign करेंगे. array name one delete dot, sorry, is equal to 10 square bracket
0 is equal to 10. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो आ रहे हैं, लेट मी गो बैक टू, इस एलिमेंट के फर्स्ट पोजीशन पे मैंने 10 रखा है। ओके, 10, 10, 20, ये फर्स्ट पोजीशन है। ओके, गेटिंग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं सब डाल देता, 5 के 5 डाल देता। दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4, दिस इज माई 4, दिस इज माई 5। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने एरे में 5 एलिमेंट रखे हैं क्योंकि मैंने उसका साइज दे दिया था यहां। ओके, साइज दे दिया था। इस साइज के हिसाब से एक वेरिएबल बना जिसका नाम ये है, उसके उस साइज में 0 पे 10 बैठा है। फर्स्ट पोजीशन मतलब यहाँ जाता, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है। ओके, नेक्स्ट 40 एंड 50। ओके, ये इग्नोर करो, ये ज्यादा हो गए, मैंने 5 का ही बनाया है इधर। ठीक है, नाउ अनिल, हाउ टू एक्सेस इट? देखो अनिल, आज भी मुझे 5 बार लिखना ही पड़ा ना कोड। ओके, 5 बार तो लिखना ही पड़ा कोड, टू बी ऑनेस्ट। इवन इफ आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, ओके, INTI is equal to 10, ये भी उसी तरीका है, राइट? ये उसी का हुआ ना। INTJ is equal to 20, ये वही हो गया है, उसी टाइप के वेरिएबल हो गया। INTK is equal to 30। Same I can write in with the variable as well, but the thing is here we need to manage only one variable, file advantage. Here you need to manage 5 variables. Okay. Second advantage, manipulation. When we are doing any operation on the array, it is easy as compared to variable. When okay, we'll discuss those scenarios as well. But in terms of number of lines, this is still a problem. उसका solution ये है जो हम सेकेंड अटेम्प्ट में बात करते हैं। यहाँ मैं एक कोड लिखता पहले, ये पहले 1 मिनट इसको डिलीट करता क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक एनी कंफ्यूजन। नाउ हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट? ओके, sys out, मल्टीपल वेज देखते हैं एरे एक्सेस करने के। sys out, प्रिंट वैल्यू फ्रॉम एरे इज इक्वल टू प्लस, ये बहुत बड़ा नाम दे दिया यार, 1 मिनट, एरे कहाँ गया? एरे ARR, ये एरे, एरे एरे 1 में ब्रैकेट कौन सा वैल्यू प्रिंट करना है मुझे? 3 नंबर का करना है। ओके, ये 3 नंबर का करना है, तो मैंने नंबर दिया, मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं। ये वैल्यू इस पोजीशन पे है और वो पोजीशन मैंने दी है। ओके, क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए? 40, करेक्ट, राइट? 4 नंबर के पोजीशन पे, 3 नंबर के पोजीशन पे क्या है? तो 40 है। लेट्स रन इट। अनिल, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। 40 तो प्रिंट हुआ, बट सबको प्रिंट करने के लिए मुझे फिर से वो लिखना पड़ेगा। दिस इज वन वे टू एक्सेस वन वैल्यू एट ए टाइम। इफ आई वांट टू एक्सेस, मैंने इसीलिए कल एक असाइनमेंट दिया था, फॉर ईच। ओके, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर ईच बोलते, ये फॉर ईच का है। मैंने बोला था इसका असाइनमेंट है, आपको पढ़ के आना है। आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट, नॉट, इफ नॉट डन लेट मी गो विद द बेसिक। INT फॉर INT I इज इक्वल, ये कल वाला फॉर लूप लिख रहा हूं, सेमीकोलन, सेमीकोलन, ARRAY नेम डॉट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? लेंथ, ओके ओके, और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखता, कंट्रोल C, कंट्रोल X कर देता, और सिंप्लीफाइड करता। INT LEN इज इक्वल टू, ठीक है, एरे का लेंथ निकल लिया। लेंथ कितना है? आप बोलोगे 0 to 4 है। ओके, मतलब लेंथ कितना हुआ? ओके, लेंथ हुआ 5। I is less than LEN, डन। ओके, क्या एरर आया? ओके सॉरी, आ रह गए ना। ओके, now I am printing something like this, sys
out printing values from array is equal to प्लस क्या लिखना है? हाय क्या लिखेंगे? हाय ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई तो एक वेरिएबल है जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है. हमें जीरो नहीं प्रिंट करना है, हमें एरे प्रिंट करना है. तो मैंने देखो इसके अंदर लिख दिया आई. मतलब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? फॉर लूप पता है अपने को, क्योंकि अपन ने कल पढ़ा था अच्छे से. फॉर आई की वैल्यू क्या है? जीरो. ये आज जीरो आ जाएगा. और इसके लिए मैंने एग्जांपल दिखाया था. जब 3 होता है तो 3 प्रिंट होता है. जब जीरो होगा तो क्या प्रिंट होगा? जीरो होगा तो 10 प्रिंट होगा. फिर उसके बाद फॉर लूप और एक बार चलेगा. ओके, तो क्या प्रिंट होगा? इसका 1 हो जाएगा. ओके, 1 हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा? 20. लेट्स सी इफ आवर कोड इज करेक्ट और नॉट. ये छोड़ दो. ये एक्स्ट्रा प्रिंट होने वाला है, इसको कमेंट कर देंगे बाद में. बट ये देखो, ये पहला वाला वैल्यू है, प्रिंट वैल्यू पर हमारे लाइन नंबर 18 वाला प्रिंट हुआ. बट उसके बाद दिस इज द एडवांटेज ऑफ फॉर लूप, दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे, कि यू कैन एक्सेस दोज वेरिएबल इन वन गो. मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेट अभी कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से. ओके, फॉर ईच भी एक फॉर ईच लूप भी है जो मैंने असाइनमेंट में दिया था. फॉर देखो ईच आता है, फॉर ईच. इसको अगर किया ना तो वो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट में वहां लिख देता. दिस टाइम एरे का वैल्यू यहाँ क्या प्रिंट करना चाहिए? आई. आई में क्या वैल्यू रहेगा? ओके, इसको कमेंट करता. डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन. आप बोलोगे यहाँ अनिल आई क्यों दिया, यहाँ एरे क्यों नहीं दिया? क्योंकि एरे की इस फॉर ईच का मीनिंग यही होता है. फॉर ईच का इस एरे का पहला एलिमेंट आई में स्टोर करो. यहाँ के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए के कर देता. ऊपर आई यूज किया है बहुत बार. इस एरे का पहला एलिमेंट यहाँ रखो, उसको प्रिंट करो. दूसरा एलिमेंट यहाँ रखो, प्रिंट करो. इस एरे में क्या किया हमने? उस एरे की लोकेशन से गेट किया. आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यूज प्रीवियस वन वाला ये मत लिखो, बट ये अपन यूज करने वाले हैं. मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. ये सिंप्लीफाइड वर्जन है फॉर लूप का. ये जावा 6 तक नहीं था, जावा 7 से आए हैं. ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरे वेयर यू कैन डू द मैनिपुलेशन. दूसरा एरे क्या काम करता है? ये पहला वाला. यहाँ इनिशियलाइजेशन और मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम हो गया. इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज किया. ये पार्ट जो इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज मतलब वैल्यू असाइन की. और इसमें क्या किया? इसमें सिर्फ डिक्लेयर किया कि भाई हमें 5 मेमोरी लोकेशन दे दो. हिप मेमोरी को बताया 5 मेमोरी लोकेशन दे दो. ओके, और इधर क्या बोला? हमें 4 मेमोरी लोकेशन दे दो और ये 4 लोकेशन पे एलिमेंट रख भी दो. ओके, सो इसके बारे में अपन कंट्रोल एक्स करता, नीचे जाता, एक के बाद एक देखते हैं. इसके भी नीचे जाता. इसको भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं? इसको भी एकदम सिंपल, सेम वे. ये देखो, ये फॉर लूप लिया, ये डिलीट. यहाँ से क्या है? एरे नेम है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ एरे नेम. एक एरे नेम है, एक एरे नेम 1 है. मैं ये भी फॉर लूप कमेंट कर देता, सेव करता. अब ये क्या प्रिंट करता है देखते हैं. ओके, 3 2 4. ओके, क्या हुआ है एरे का? ओके, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. तो एरे का लेंथ गलत लिया ना अपन ने. ये पुराने वाले एरे का लेंथ लिया, और वो उसमें कितने एलिमेंट है? उसमें 5 एलिमेंट है. तो ये एरर आया. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेप्शन. क्यों? यहाँ क्या चाहिए था? यहाँ सिंपली चाहिए था 4, क्योंकि अपन ने गलत वेरिएबल यूज किया. ओके, लेट मी रन इट अगेन. इसलिए वो बोला कि आप यू आर ट्राइंग टू एक्सेस एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट जहां कोई लोकेशन पे ना मेमोरी सेव की थी ना वहां कोई वैल्यू है. 3 4 से छोटा, मतलब 0 to 3 ना. 0 1 2 3. और यहाँ पहले क्या था? लेंथ क्या थी इसकी? इसकी लेंथ क्या थी? 1 2 3 4 5. तो दोनों की लेंथ अलग थी. इसकी 4 ही लेंथ है और इसकी 5 लेंथ थी. तो अपन ने 5 यूज कर लिया था. अभी मैंने 4 कर दिया मैन्युअली.
right click, run as Java application. हो गया array print. ये 40 अभी भी print हो रहा है. So these are the two ways to manipulate the variables with the help of array. Any doubt? Are we going to use arrays in automation? Yes. कितनी बार? बार बार, हर बार लगता है. इससे कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं, इसलिए ऐसे यूज करते. जो दिख रहा है ऐसे यूज करते, उसमें से सिर्फ वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम. दिस इज वन वे टू एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू. दिस इज अनदर वे. दिस इज अनदर वे. दिस इज वन वे ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू. दिस इज अनदर वे टू स्टोरिंग द वैल्यू. guys you are getting दो वैल्यू का ही लिखो, 4 वैल्यू, 3 वैल्यू का लिखो, जो भी लिखना है, ताकि आप जल्दी लिख पाओ और आपको कंसेप्ट पता चले. ठीक है. ओके, सो यू नीड टू राइट अगेन इन द बेसिक. यू नीड टू राइट माय एरे, और ये एक इसको कम कर देता, मैं छोटा कर देता है, डिलीट. ओके, पूरा कोड आपके सामने है अभी. Okay, let's write this code. I have multiple assignment for you for next week. और ये कोड में anybody not added to WhatsApp group yet, I am going to share this code over the WhatsApp group. आप WhatsApp group से खुद को मेल कर लो और अब आपके पास कोड, you can put it into the your Eclipse folder. और ये क्या आया था, import स्टेटमेंट भी अपन देखेंगे. आज नहीं होगा शायद import स्टेटमेंट और बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेशन देखेंगे. ओके, ये कोड है. 5 की जगह इसको 4 कर देता है. I am not getting this, Supriya. Okay, guys, if you want, you can listen one more time. If you want, you can listen one more time. Okay, so let me go to the paint, my favorite paint. Okay, मुझे 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है. हाँ, 10, 20, 30 एंड 40. इनको अगर जावा में कोड में स्टोर करना है तो कैसे लिखना पड़ता है? int I is equal to 10, int j is equal to 20, int k is equal to 30, int x is equal to 40. ऐसा लिखना पड़ता. सो ये थोड़ा ऐसे अगर 100 वेरिएबल हो गए तो ये बहुत बड़ा कोड हो जाएगा एंड इट टेक्स टाइम. रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाता है. इज देयर एनी बेटर वे टू स्टोर दिस एलिमेंट्स? आंसर इज यस. इनको एक ग्रुप बना दो, इनको बोलो ये माय नंबर्स का एक ग्रुप बना दो. तो इनको कैसे स्टोर कर सकते हैं? इनको बोलते हैं कि ये इंटीजर है ना, तो इनको एक ग्रुप बना दो. इस ग्रुप का नाम दे रहा हूं मैं माय नंबर्स. ओके, माय नंबर्स मैंने बोल दिया, इस ग्रुप का नाम है माय नंबर्स. नाउ द थिंग इज, ये जो नंबर है, ओके, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम दिया है माय नंबर, बट ये जावा में कैसे लिखे? जावा बोलता है अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि इंट. क्यों? ये इंटीजर है इसलिए. माय नंबर्स, okay, is equal to. Hello. Yeah. Where will we use these types of application, like this much of because Okay. the same thing, a database also like same thing, like arrays, you're storing the numbers, and what is the difference? I didn't get that. Okay, so database has nothing to do with this array. Okay. Okay. Now let's talk about the when we can use it. I told you, like suppose you have an option on the UI
where you want to select 100 element from the table. Okay. Consider you have a table, or maybe you have a UI where there are the radio checkboxes. Checkboxes. Okay. One checkbox, another checkbox, another checkbox. You have to select the checkboxes. Obviously, there is some name. There is some name against each checkbox. Okay. Now you want to check these checkboxes, and there are maybe 10, 20 checkboxes. You can't say that I will create 20 variable. Instead of that, I will create only one way by which I can store all the element. And that variable name is my number or my elements. See, one name is actually working everything, giving us everything. One, I don't have to create my name 1, my name 2, my name 3, my name 4, 20 times. Here, I will have only one variable which should hold all the data, and that variable will look like this. Okay, so my numbers 4 yahan likha hai maine already. Okay, so this is 1, this is 2, and this is 3, 4. Okay, and here then I will go and I will say this is my number 10. Okay, this is my number 20. This is my number 30, and this is my number 40. Okay, and we will access this element with not with the number. We will access this element with their position. This is positioned at number 0. This is positioned at number 1. This is positioned at number 2, and this is positioned at number 3. So that's why its size or length is 4, and item stored from 0th location to 3rd location. Okay, this is the same thing which we can do, but we need 4 variables to be created. Now I have created only one, and the name of this array is my number. Getting now little bit? This is the thing which I have done. 0th position पे 10 है, my numbers के 0th position पे 10 है, my numbers के first position पे 20 है, because I might need to store maybe 100 element, and I can't create the variable 100 time. Readability. If you want, I said like no one is going to stop you. Anju, getting? Supriya? Yes. Getting? तो मैंने वही किया, सिर्फ सिंटैक्स है उसमें, बट मैं बोल रहा ना कि ये सिंटैक्स भी नॉट, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस सिंटैक्स, दिस इज मच बेटर. ये स्टोर करना मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है. ये देखो 10 20 ये सेम नंबर इसलिए रख रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो. अभी देखो ऊपर के नंबर ऑफ लाइंस का कोड देखो और इसका कोड देखो. इसको कितना लाइंस ऑफ कोड लगा? 4 लाइंस ऑफ कोड, और ये प्रिंट करने के 2, 5, 6, 7, and the same thing I have achieved in 4 line. Imagine you have 100 element. Okay, ठीक है सुप्रिया? Okay. Yes. Okay, Yeah. so इसका अल्टरनेटिव ये निकाला है, और वो अल्टरनेटिव पोजीशन के हिसाब से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. आपकी पोजीशन आपको पता चाहिए. पोजीशन होती है ये पोजीशन 0 to 4, बट मैंने एरे के मल्टीपल तरीके बताए हैं. ओके, कि कैसे उनको प्रिंट किया जा सकता है. एक को भी किया जा सकता है, मल्टीपल को भी किया जा सकता है, फॉर लूप से भी किया जा सकता है, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं. आई ट्राइड. ये छोड़ के एरे में कुछ नहीं, इतना ही, दैट्स इट. ये छोड़ के एरे में सिर्फ क्या बढ़ेगा? काउंट बढ़ेगा. ये 4 की जगह 10 हो जाएगा, 10 एलिमेंट डालोगे, बट दैट्स ऑल अबाउट एरे. बट मैं आपको वैरायटी, मतलब कंसेप्चुअली यही है, यही कंसेप्ट सब जगह यूज करना है. एंड दैट for that you are going to do the lot of practice, and that practice will be done with the assignment. Clear guys? I hope you are writing the code as well. Okay,
एरे में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क आएगा तो एरे का आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए। मैं एरे दूसरे सेलेनियम के दिन से कोड से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। ऑब्वियसली मैं मुझसे ज्यादा आप लोग कोड लिखोगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एरे बिकॉज आई एम गोइंग टू से प्लीज क्रिएट एन एरे। तब मुझे मत बोलना कि सर एरे क्रिएट करना हमें तो पता ही नहीं है। ओके, बट दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड it's confirmed whatever I am going to explain here, and I'm going to tell you that this concept is important. Please make a note of this. That will be used in automation. कंसेप्ट यूज करना है, सिर्फ क्या चेंज होते हैं, नंबर वैल्यूज वही चेंज होते हैं, बट सिंटैक्स वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है। हाउ टू कमेंट मल्टीपल लाइन्स। ओके सौरभ, ये देखो कमेंट कैसे करते हैं मल्टीपल लाइन। सिलेक्ट करने का, कंट्रोल फ्रंट स्लैश दबाने का, देखो 4 लाइन कमेंट हो गए। अनकमेंट करने के लिए भी फिर से वही सेम लाइन सिलेक्ट करने की, जो कमेंट किए हैं उसको फिर से कंट्रोल फ्रंट स्लैश में लिखता, CTRL कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। कैसे रहते हैं फ्रंट स्लैश? पिंक। अरे यार किसको गया है? एवरीवन। ओके, कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश दिया, कमेंट हो जाती है लाइन। जितनी लाइन सिलेक्ट की उतनी, एक लाइन करोगे तो एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। एवरीबॉडी विथ मी, अंडरस्टैंडिंग? 4 बार कोड लिखोगे तो समझना ही है, बट अभी एटलीस्ट कंसेप्ट समझना चाहिए। सिंटैक्टिकली यार, सिंटैक्ट तो मुझे भी आज पाइथन के सामने बिठा दो, मुझे 4 मिनट लगेंगे ये देखने को कोड। ओके, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू पाइथन, दो आई एम नोइंग इट, आई एम यूजिंग पाइथन, बट सिंटैक्टिकली मैं जावा से बहुत कंफर्टेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 17 साल से जावा पे काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपको एटलीस्ट 2 दिन तो लगेंगे सिंटैक्टिकली। ओके एक एक लिखो, पहले इतना ही कोड लिखो, मतलब सिर्फ एक ही प्रिंट करो, एक ही एरे प्रिंट करो, कोड देख लो चल रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा एक एक करते हुए कोड लिखना चाहिए। एट ए टाइम सारा कोड लिखने का और रन करने का ऐसा नहीं करने का। छोटा छोटा, ये कोड लिखा है इतना, रन करके देखने का चल रहा है, फिर उसमें ये प्रिंट कर दो। ये क्या आ रहा है इधर? रेड लाइन क्यों आ रही है? पता नहीं, है बग है जूम में। ऑल गुड गाइस? चलो लिख लो, लिखने के बाद मुझे पिंग करो। हो गया है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। And I will be sharing all the content. आज नहीं तो कल मैं ना सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता कंटेंट। शुरू भी डन। असाइनमेंट लेके जाने हैं सबके लिए। महेश डन। सौरभ डन। प्रत्युम डन। प्रसाद डन। रजत डन।
Radhika done. Okay, so guys, since most of the guys are done, मैं assignment देता हूँ. मैंने लिख के रखे आपके लिए assignment, okay? And those are all for आपको असाइनमेंट कैसे दे? एक ग्रुप का चैट आपके पास सेव रहता है क्या? हाँ, नो, ओके, वीडियो का नहीं रहता. ओके, सर आप ग्रुप में डाल दो, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इधर अपने इसमें लोकल में. हाँ कर लो, मैंने पिंग किया, देखो कॉपी पेस्ट करो, नोटपैड में डालो. असाइनमेंट 4 असाइनमेंट है, एकदम सिंपल सिंपल है. ओके, पहला है राइट एरे प्रोग्राम टू चेक इफ स्पेसिफिक वैल्यूज आर प्रेजेंट. अगर प्रेजेंट है तो वो लिख आउटपुट होना चाहिए कि वैल्यू प्रेजेंट, ऐसा. ओके, अदरवाइज वैल्यू नॉट प्रेजेंट. दूसरा प्रोग्राम है राइट एरे प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली द फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम 5 और 9. 5 और 9 में से जो भी वैल्यू आएगी, जो पहली आएगी वो प्रिंट होनी चाहिए. और मैंने एरे लिख के भी दिया है नीचे. उसके बाद राइट क्या लगाना है इसमें पता है ना? इफ एल्स लगाना है बस. राइट एरे प्रोग्राम टू चेक इफ स्पेसिफिक वैल्यूज आर प्रेजेंट, बट दिस टाइम क्या है? स्ट्रिंग है. एंड आल्सो प्रिंट देयर पोजीशन, कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है. ओके, थिंक ऑन दिस कि कैसे कर सकते, कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है. मतलब नाम दिए मैंने, एंड दिस इज विथ स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटेजर, इट्स अ स्ट्रिंग. उसके बाद है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ स्पेसिफिक वैल्यूज आर प्रेजेंट. इफ नॉट प्रेजेंट देन आउटपुट शुड से एलिमेंट नॉट प्रेजेंट. मतलब इफ नॉट प्रेजेंट मतलब पूरे इसमें है ही नहीं. देखो आप लास्ट वाले एरे में ना सचिन है ना विराट है. लास्ट वाला असाइनमेंट, ना सचिन है ना विराट है. तो आपका सब कुछ एरे खत्म होने के बाद आपका प्रिंट होना चाहिए कि सचिन भी प्रेजेंट नहीं है और विराट भी प्रेजेंट नहीं उस लिस्ट में. ओके, एनी डाउट इन 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 असाइनमेंट? एनी डाउट इन असाइनमेंट? और एक असाइनमेंट देनी है जो टाइप करूंगा मैं अभी. ये कॉपी पेस्ट कर लो आप ये कर लिया तो आपने इफ एल्स भी समझ जाओगे, आप फॉर लूप भी समझ जाओगे, आप एरे भी समझ जाओगे इन डिटेल. मतलब आपको कॉम्बिनेशन करने का पता चलेगा. दो जावा के कंसेप्ट, एरे एंड इफ एल्स, एरे एंड फॉर लूप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करवाने का. ओके, तो ये इसमें पता चलेगा. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सब कुछ आपने सीखा है. कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक. क्लियर? एनी डाउट इन असाइनमेंट? ठीक है, और एक लास्ट वाला प्रोग्राम मेथड का. ओके, राइट जावा प्रोग्राम टू ऐड टू ऐड टू numbers, addition and subtraction of two numbers. Okay, use addition and subtraction method to complete this. You have to create two different classes. One will have main method and second will have addition and subtraction मेथड. ओके, ये दूसरा प्रोग्राम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है. थिंक इट, ट्राई टू राइट इट. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर ऑन द ग्रुप. मैंने रिप्लाई नहीं किया, आपको पता है, आप रिप्लाई करो. कोई भी किसी को भी आता है, वी वर्क एज अ टीम. ओके, मैं कहीं बाहर हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, या चैट नहीं देखा है और आपने चैट देखा और आपको आंसर पता है, immediately you can reply. We will work as a team and we'll try to solve all the issue those are actually present on the group. Okay, any doubt? देखो मैंने एक्सप्लेन किया है, ज्यादा लिखने का ट्राई किया है डिटेल में. तो आपको 5 असाइनमेंट है.
ओके, ये सारे असाइनमेंट को आप अगर बैठ के करोगे ना 1 घंटे में हो जानी चाहिए मैक्सिमम। आपको टाइम लग रहा है, अगर आपको टाइम लग रहा है इसका मतलब आपको एग्जिस्टिंग कोड जो है वो पहले राइट करना चाहिए, मतलब रीराइट करना चाहिए। एरे का प्रोग्राम लिखो, इफ एल्स का प्रोग्राम फिर से लिखो, फॉर लूप का फिर से लिखो, प्रैक्टिस करो उसकी, मेथड का प्रोग्राम फिर से लिखो, प्रॉब्लम आया तो ही एग्जिस्टिंग प्रोग्राम देखो, एंड देन ट्राई टू राइट दिस असाइनमेंट। एनी डाउट गाइज? ओके, फाइन फाइन, ओके। सो ये मैं भी लिख लेता, मेरे पास भी रहनी चाहिए डिटेल। एंड ओके, सो आपको इनफ वर्क है नेक्स्ट वीक के लिए। एंड माय फर्स्ट थिंग इज, इवन इफ यू डोंट वांट टू राइट असाइनमेंट, दैट्स फाइन, यू रिपीट द एग्जिस्टिंग कोड एज इट इज। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग द असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा और उससे आप है ना हमेशा कनेक्टेड रहोगे क्लास में। अदरवाइज आप कोड लिखने को टाइम लगेगा तो यू विल फील लाइक यार क्या हो रहा है। ओके, एंड इट विल टेक सम टाइम। आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एक एक बहुत अच्छा वीक मिला है, ये कमिंग 5 डे, उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करो, ठीक है? ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। आई विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट सेशन बाय 8 AM, 8 to 8:30। जिसको डाउट है वो आएगा, जिसको डाउट है असाइनमेंट में वो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट या प्रोग्राम भेजेगा। ओके, एंड देन विल स्टार्ट द एक्चुअल सेशन बाय 8:30। ठीक है, ट्रेनिंग कंटेंट कहाँ गया मेरा? 1 मिनट, बैच 24। ठीक है, आई थिंक मैं जस्ट स्टोर कर ले रहा हूँ। बैच 24 कहाँ गया मेरे? नहीं बना ही नहीं। असाइनमेंट्स मैंने मेरे पास भी रख दिया है वो असाइनमेंट। ओके, सो वी आर गुड टू क्लोज टुडेज कॉल। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। ओके, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करोगे मुझे, वो कमेंट हाँ, कर बता दो। वो कमेंट का हो नहीं रहा ठीक से मेरे। क्या क्या क्या? मैं समझा नहीं। वो मैं कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश कर रहा हूँ तो वो प्लस नहीं, कंट्रोल प्लस नहीं, कंट्रोल फ्रंट स्लैश बस। प्लस वो दोनों कंबाइन में यूज करने ना, इसके लिए लिखा था कंट्रोल फ्रंट स्लैश। वो दिख नहीं रही है कमेंट। कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। प्लस मत दबाओ। नहीं नहीं, प्लस नहीं दबा रहा, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश दबा रहा। स्क्रीन शेयर कमेंट नहीं हो करोगे? रहा है? हाँ हाँ, नहीं। करो 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 करो। रेस्ट ऑफ द गाइज, इफ यू आर ऑल गुड देन यू कैन क्लोज द कॉल। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। हाँ, करो सिलेक्ट, 2-3 लाइन सिलेक्ट करो। ओके, कंट्रोल और फ्रंट स्लैश दबाओ। नहीं नहीं हुआ ना? आपने हाँ कौन सा नहीं। बटन कौन सा दबाया मुझे बताओ पहले। वो फ्रंट स्लैश प्रिंट करो तो स्क्रीन पे। हाँ, वही 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 चाहिए। यही हाँ, है ना? ये फ्रंट स्लैश है। कंट्रोल फ्रंट स्लैश से कमेंट होना ही चाहिए। हाँ, करो फिर से। हाँ, नहीं हुआ? नहीं हो। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ओके, ये इंडिविजुअली हो रहा है एक एक करके। हाँ, इंडिविजुअली हो रहा है। ओके, Yes. ओके, रुको रुको। सौरभ अपन मैं देखता इसका सेटिंग है क्या कुछ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपका स्क्रीन शेयर है ना? मुझे देखने दो। और एक तरीका होता है, और एक तरीका होता है, बट दैट आई वोंट रिकमेंड क्योंकि वो अच्छा दिखता नहीं है। हम्म, यार वही है यार। और कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल ही दबा रहे हैं ना? हाँ, कंट्रोल ही है। लेफ्ट कंट्रोल दबाया, राइट भी दबाया। नहीं। नहीं हो रहा बिकॉज वही है यार, कमेंट आउट। ओके, 1 मिनट। और एक कमेंट का तरीका है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि मुझे वो मिल जाए। मैं भी गूगल कर रहा हूँ बाय द वे।
दो तरीके से होता है कि ब्लॉक कमेंट चलता है क्या आपका, वो तो देख लेते हैं। कंट्रोल 7 दबाओ तो 7। मल्टीपल सिलेक्ट करके। हाँ मल्टीपल सिलेक्ट करके कंट्रोल 7। हाँ हुआ। हुआ। हाँ हुआ। इंटरेस्टिंग यार। और एक करो। कंट्रोल ऊपर की सिलेक्ट करो। हाँ कंट्रोल शिफ्ट फ्रंट स्लैश दबाओ। नहीं नहीं नहीं, डिलीट हो गया। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट फ्रंट स्लैश चल रहा है। नहीं नहीं वो नहीं ओके चला। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट फ्रंट स्लैश। नहीं, वो डिलीट हो रहा है। वो डिलीट हो, नहीं नहीं डिलीट नहीं हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। वो आ, 7 वाला चल रहा है सही से। चलो ठीक है, वो चल रहा है ना। पता नहीं हाँ 7 को क्यों ले रहा है वो। इंटरेस्टिंग। ठीक है चलो, ये याद रखना बट। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके ऑल गुड गाइस। यस। बाकी लोग है अभी भी, बट गाइस वी आर डन फॉर टुडे। हाँ चलो बाय बाय, मैं भी लॉग ऑफ कर रहा हूँ।